Good evening. A warm welcome to all our Rotarians, aunts, lords, and esteemed guests from Rotary Club of Delhi Premier, their President, Rotarian Raghav Chandra, and First Lady, Anne Kalpana. Rotary Club of South Central, their President, Rotarian Rajneesh Mittal, and First Lady, Deepika Mittal. And Rotary Club of Delhi South End, their President, Rotarian Divya Ahuja, and First Lady, Ruchi Ahuja. Who are Rotarians? Rotarians are people in your life who make you laugh louder, smile brighter, and live better. It's a pleasure to see 3 clubs gathered together for this event after 2 long years of only virtual meetings. And a meeting on such a wonderful topic of yoga and Ayurveda. As Bhagavad Gita states, yoga is the journey of the self, through the self, to the self. And we are gathered here to learn more about this from none other than Swami Ramdev Ji. We welcome him and look forward to this knowledge session. We also extend a warm welcome to Dr. Girish Ahuja, an eminent tax practitioner and a renowned name in his field, who has been instrumental in bringing Swamiji to the club today. Before we start, I request everyone to stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे The purpose of light is to create more light, to open people's eyes, and to reveal the marvels around. So let us begin this evening with lighting the lamp. I request President Rotarian Divya Ahuja and First Lady Ruchi Ahuja from the Rotary Club of Delhi South End to please come up on the stage. President Rotarian Raghav Chandra and First Lady Kalpana of Rotary Club of Delhi Premier to please come up on the stage. I also request President Rotarian Rajneesh Mittal and First Lady Deepika Mittal of Rotary Club of Delhi South End Central to please come on the stage. I now request Rotarian Sudhir Seth of Rotary Club of Delhi South End to accompany Swami Ramdev Ji for the lamp lighting. जन गण मन अधिनायक
I request Rotarians Sudhir Seth and Swamiji to stay back and take their seats, and the presidents and first ladies to step down and take their seats. Because we cannot scrub our inner body, we need to learn a few skills to cleanse our tissues, organs, and mind. This is the art of Ayurveda. The time is changing, and not only the policymakers of India, but the whole world is realizing the importance of Ayurveda. Who could have thought that some years back, people with a cosmopolitan culture would prefer a bottled gourd juice or a gooseberry juice over a carbonated soft drink in the near future? No medicine can compensate for an unhealthy lifestyle. Ayurveda is not just a few medicines or a few scriptures, but a holistic, total lifestyle deeply involved with yoga, meditation, food habits, and epigenetic social cultures. And yoga is not about touching your toes. It is about what you learn on the way down. Yoga is not to be performed, yoga is to be lived. Sometimes the most important thing in the whole day is the rest we take between two breaths. Inhale the future and exhale the past. On the lighter side, in the words of Rory Fredman, if everyone did yoga, we would have world peace. We have amongst us Swami Ramdev Ji, who is going to share his immense knowledge with us on this subject. Although he needs no introduction, but protocol demands so, I request Rotarian Dr. Deep Goyal from Rotary Club of Delhi Premier to introduce him. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वामी रामदेव जी को तो वैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। देश विदेश में उन्होंने इतना सम्मान और आदर सत्कार पाया है कि अविश्वसनीय लगता है। लेकिन मेरे अध्यक्ष और मेरे सचिव राघव जी और पंकज जी का आदेश हुआ कि ये परिचय देना है और हिंदी में देना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस औपचारिकता को निभाऊं। स्वामी रामदेव महाराज जी का जन्म 1965 में महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ। उन्होंने अपनी 8वीं तक की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद अलग अलग गुरुकुल और आश्रम में विभिन्न गुरुओं के साथ दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने योग, धर्म, आयुर्वेद, साहित्य, ग्रंथ एवं राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। आप आयुर्वेद के परम ज्ञानी हैं। आयुर्वेद के प्राचीन शैली को उन्होंने देश विदेश में प्रसिद्ध किया और पतंजलि के द्वारा स्वदेशी चीज़ों के उपयोग को बल दिया। इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को सशक्ता मिली। आप पूरे विश्व में कर्म योगी की तरह जाना जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं।
आपने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की और स्वामी शंकर देव महाराज जी के हाथों से शिक्षा ग्रहण की। 1995 में अपने बड़े क्लोज मित्र आचार्य बालकिशन व आचार्य करमवीर के सहयोग से योग ट्रस्ट की स्थापना की। ये योग ट्रस्ट के माध्यम से पूरे विश्व में इन्होंने योग को प्रसिद्ध बनाया। इंग्लैंड के संसद जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, स्वामी जी को आमंत्रित किया और सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी स्वामी जी को आमंत्रित किया और सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह और कलिंग महाविश्वविद्यालय ने स्वामी जी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। स्वामी जी ने योग के क्षेत्र में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से 1,20,000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन ये स्वामी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ और इससे हमारे देश की जो प्राचीन कला है योग, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई और आज 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के हिसाब से मनाया जाता है। स्वामी जी ने अनगिनत पुस्तकें लिखी और अनगिनत पुरस्कार पाए। अगर मैं पूरा स्वामी जी की जीवन शैली को पढ़ूं तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन स्वामी जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी ने सांस को नियंत्रण करने का संदेश घर घर पहुंचाया। इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ असाधारण और साधारण लोग जैसे मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैंने योग करना शुरू किया स्वामी जी से प्रेरित होकर, और जब मुझे लगा कि मेरा सांस पे कंट्रोल आ गया है, तब मैंने और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहा। एक बार मैं थका हारा घर आ रहा था हॉस्पिटल से, तो रास्ते में मुझे लगा कि आज जाके मैं नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखूंगा, हसीना मान जाएगी, मेरे दिमाग में आया। घर पहुंचा, घंटी बजाई, पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, आज हम महाभारत देखेंगे। मैंने कहा, मैं सोच रहा था हसीना मान जाएगी देखेंगे। कह रहे, हसीना तो महाभारत के बाद ही मानेगी। तो हमने महाभारत देखना शुरू कर दिया। मैं, मेरा बेटा और पत्नी देख रहे थे। मैंने बेटे का हाथ में लिया तो मैंने देखा उसके नाखून बढ़े हुए हैं। मैंने कहा, बेटा नाखून काट लो। बोला, पापा टाइम नहीं है। मैंने कहा, बेटा नाखून काटने में 1 मिनट लगते हैं, मैं दोनों हाथ दोनों पैर के नाखून 1 मिनट में काट सकता हूँ। बोला, ये संभव नहीं है। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने कहा, मैं 40 सेकंड में काट लूँगी। तो मैंने कहा, शर्त लगा लो। मैंने कहा, 5,000 रुपये की शर्त लगाते हैं। कहते, नहीं, पैसे की शर्त नहीं। मैंने कहा, तुम बताओ फिर। कहते, अगर मैं जीत गई तो 1 हफ्ते तक तुम मेरे दास बन के रहोगे। मैंने कहा, ठीक है, वो तो वैसे भी रहते हैं। मैंने कहा, अगर मैं जीत गया तब? कहते, तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, 6 दिन तब भी दास रहोगे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू स्वामी जी। Thank you, Dr. Deep Goyal. I would now like to request Rotarian Sudhir Seth to proceed with the talk with Swamiji. Swamiji, namaskar. Namaste, Seth sir. We are privileged to have you here today with us and look forward to a great interactive session. आज की चर्चा हम हिंदी और इंग्लिश में करेंगे, जरूर सर, with your permission. जरूरी। खिचड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि कब और कैसे आपने योग शुरू किया? मैं भाई से बोल रहा था, क्या जो परिचय दे रहे थे, क्या नाम है? दीप जी। मैंने कहा, भाई एक मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत देना। उसने निभाया नियम। बाकी तो अपना और अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो सबको देना ही चाहिए। और जो घर में सुखी रहना चाहते हो तो ज़िंदगी भर पत्नी की गुलामी करनी चाहिए। गुलामी कोई नहीं होती है, तो हंसी मजाक की बात है। घर परिवार संसार प्रेम से चलता है। इंट्रोडक्शन हमारा और कंट्रीब्यूशन, ये होता है इंट्रोडक्शन। मैंने योग शायद मैं 7 से 9 वर्ष का था,
तब किताबें पढ़ के मैंने आसन सीखे, प्राणायाम सीखे और मैं तब से करने लगा। आज लगभग 45 सालों से मैं योग कर रहा हूँ और करीब 30 सालों से योग करा रहा हूँ। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मैंने शिविरों में योग कराया है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। अभी भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने कहा कि 75वां वर्ष आज़ादी का देश मना रहा है, तो हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लिया दीप जी। और अभी मैंने राष्ट्रपति भवन में 2 दिन प्रोग्राम रखा था। ऑफिशियली 114 करोड़ और अनऑफिशियली 200 करोड़ से ज़्यादा सूर्य नमस्कार हमने करा। मुझे मास मूवमेंट करना आता है, लेकिन क्लासेज के बीच में आने से बड़ा डर लगता है। मुझे जब बोला गया कि रोटेरियंस के बीच में आना है, तो मैंने कहा बड़ा खतरनाक मामला है। मतलब एक अलग प्रकार का लोगों में रुतबा होता है साहब, हम बिना रुतबा वाले आदमी। तो रोटेरियन में बड़ा रुतबा होता है, लायंस वालों में भी अलग तरह का रुतबा होता है। अलग अलग क्लब्स हैं देश के अंदर, हम ठेरे ठेठ देसी। तो जितने भी लोग हैं, मैं ये बात कह करके आपको चिढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर अपने आप को एक आम आदमी मान करके मेरे साथ बात कीजिए, तो आप खुश रहेंगे, आप हंस सकेंगे, मुस्कुरा सकेंगे, कोई बात अच्छी लगेगी तो ताली भी बजा सकेंगे। हाँ, नहीं तो आदमी बड़ा, अरे मैं बड़ा आदमी हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा स्वामी जी आप बड़े हो गए हो, ज़रा आप इतना ज़ोर से मत हंसा करो। मैंने कहा भाई बड़ा होना जाए पहाड़ में, अपन हंसने से नहीं रुक सकते। ये क्या मतलब हुआ? हंसना भी है हिसाब से, हमारे खून में है। तो ये चीज़ें तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आपने योग पूछा, मैं 3 बातें उसके साथ जोड़ देता हूँ। मैंने योग को अपनाया, तो मैं सच कहता हूँ मुझे किसी ने नहीं कहा था कि योग करो, तो शायद ये, क्योंकि मैं उसको प्रूव तो कर नहीं सकता। जीवन का अनादि और अनंत का प्रवाह, कोई प्रारब्ध था कि मैं योग करने लग गया। और योग करते करते मैंने पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर गुरुकुल में पढ़ा, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई हिमालय की। तो मैंने जो गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा, उसमें विधिवत पढ़ाई की मैंने, व्याकरण शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, आयुर्वेद शास्त्र की। फिर जो कुछ मैंने सीखा है वो अनुभव से सीखा है। आज मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों के साथ में बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हुई है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम पर एक संस्था काम करती है, इनके साथ में मेरा संवाद और संघर्ष 3 दशक पुराना है। मैं कहता हूँ भाई जो मैं कह रहा हूँ, मैं लॉजिकली, साइंटिफिकली, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ में आपको प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ एक दिन में 1 से 2 किलो वेट कम होता है, तो मैं लॉजिकली भी प्रूव कर सकता हूँ। और आप में से भी कुछ मेरे यहाँ पर भी कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं। तो किसी को भी प्रमाण चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपका 1 से 2 किलो वेट कम करूँगा डेली, 1 दिन में। नहीं साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या राघव जी क्या नाम? तो अनुभव सबसे बड़ा सत्य है जगत में, और अपने अनुभव को पुष्ट करने के लिए बाकी सारे तत्व हैं। तो सुधीर साहब, हमने तो बालकपन में योग करना शुरू कर दिया था, अनजाने में, और फिर हमको ये नहीं पता था कि भगवान हमसे इतना बड़ा योग कराएगा कि आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के कमोबेश 200 करोड़ लोग रोज या कभी कभी योग करने लग गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है बहुत ही छोटी उम्र में आपने योग शुरू कर दिया। स्वामी जी कहते हैं योग जिंदगी है, और आजकल के युग में हम देखते हैं
कि हमारे उम्र में तो फिर भी अगर लोगों को कोई कहे डायबिटीज़ या कोई कहे हाइपरटेंशन, कोई कहे सर्वाइकल, कोई कहे स्पॉन्डिलाइटिस, हम देखते हैं जवान बच्चों को आजकल ये सब बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। आप हमको प्लीज़ बताएं, हमारे रोटेरियन दोस्तों को, कि कैसे योग के द्वारा इन बीमारियों को परे रखा जा सकता है। हाँ, ये सच है कि रोग ने आयु की सीमाओं को तोड़ दिया है। बड़ा प्रश्न है, छोटा उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। 12 से 14 साल के लड़कों को एंग्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रहा है, जो पहले कहते थे बुढ़ापे की बीमारी है, कुबड़ीवात, धनुर्वात आदि टेढ़ा हो जाता है। मेरे पास हर समय करीब करीब 50 से 100 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ की भर्ती रहते हैं। और उनको डायबिटीज़ किससे हुई? एलोपैथी की दवा खा के। किसकी? सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त की दवा खा के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही। माना कि हो सकता है कि आपके बच्चे को ना हुई हो अभी तक, लेकिन कभी भी आपके बच्चे को हो सकती है। इसलिए कम से कम 10-12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये एलोपैथी की दवा देने से पहले सोचें। टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है बच्चों को, और थायराइड जेनेटिकली हो ही रहा है, सबको पता ही है। बच्चों को जन्म से हार्ट में छेद है, पैदा होते बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। आजकल जो नए अर्थराइटिस, छोटे बच्चों को अर्थराइटिस भी हो रहा है। और कफ, कोल्ड, एस्थमा की तो कोई सीमा ही नहीं, जिसको देखो बच्चों के नाक ही चलते रहते हैं। बच्चों को हमने कभी जिंदगी में, मुझे स्ट्रेस है, मैंने आज तक नहीं बोला। आज तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे स्ट्रेस है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं स्ट्रेस होता क्या। बच्चे छोटे छोटे जब बोलते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है, बच्चे बोलते हैं मुझे ओवर थिंकिंग है, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हमने सच में एक बार भी नेगेटिव सोचा ही नहीं। क्यों सोचे भाई? तो हमें अपने बच्चों की परवरिश नहीं करनी चाहिए। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, जिनको 10-20 लोगों को संभालना आता उनको शादी कर लेनी चाहिए। 10, 20, 50, 100 लोगों को संभालना आता हो, शादी कर लेनी चाहिए। और जो सारे जगत को संभालने की ताकत रखता हो उसको सन्यासी हो जाना चाहिए। और जो इतना भी ना कर सकता हो उनको ब्याह नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ठेठ भाषा में बोलो तो उनको रंडवा रहना चाहिए। लोगों को जीना आता नहीं, ऐसे जिए जा रहे हैं। इसलिए हम बीमारियों के बारे में चर्चा करें, संस्कारों के बारे में चर्चा करें, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के बारे में चर्चा करें। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें निभाना आना चाहिए। और यदि जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो फिर आप एक समझदार, विवेकशील, प्रोग्रेसिव इंसान नहीं कहला सकते। तो हम लोगों को अपने बच्चों के बारे में ये सोचना चाहिए कि हमने बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चे पैदा करना ये कोई शौक नहीं है। बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है। और बच्चे पैदा होकर के कुछ भी बन जाएं, ये गैर जिम्मेदाराना काम, ये एक तरह से ये सोशल क्राइम है। ऐसे बच्चे पैदा कर दिए कुछ भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। मैं तो कई संदर्भों में कहते हैं हमारे यहाँ इतने लोगों पर इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने नर्सेज होने चाहिए, इतना ये स्टाफ होना चाहिए, इतने लोगों पर ये होना चाहिए। ये किसी सभ्य देश की निशानी नहीं, ये कमज़ोर, कायल, बुज़दिर, आलसी और प्रमादी देश की निशानी है। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जहाँ सुबह उठ करके हिंदुस्तान योग करे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग, केवल योग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस के लिए they can run, they can play, they can do yoga, योगिक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आप चाहते हैं वो कर लो, लेकिन करो तो सही। ये क्या मतलब हुआ? सुबह पड़े हुए जी, 7-8 बजे 9 बजे जग रहे हैं जी, 12-1 बजे तक सोए नहीं जी, निशाचर हो रखे। निशा माने रात्रि, चर माने घूमना और खाना। तो मुझे लगता है आज से थोड़ी निशाचरपना कम करेंगे। स्वामी जी, योगा के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर जिमिंग? कंपैरेटिवली आप देखेंगे, जिम एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो आपके हार्डवेयर्स को अच्छा कर देता है, आउटर बॉडी को, आउटर लुक को ठीक करता है। जो इंटीरियर है ना वो योग से अच्छा होता है। जिम से आपका हार्डवेयर अच्छा हो जाता है, लेकिन योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, जप, तप, स्वाध्याय से आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है।
Wonderful, wonderful, wonderful. We are not only a physical body. We have 5 senses. Our existence is the composition of 5 elements. And man, buddhi, chitta, ahankar, antahkaran, chatushtaya. This is totally the composition of our mind. This is totally different. Annamaya, pranamaya, manomaya, vijnanamaya, anandamaya kosh. We are not only a body, we are not only a soul. कभी भी मैंने देखा कुछ आध्यात्मिक लोग, मैं केवल आत्मा हूं। अरे केवल आत्मा है तो फिर शरीर को ढोए क्यों फिर रहा है? आत्मा को लेके उड़ जा कहीं। केवल आप शरीर हो तो मरने के, जिसको मरण कहते हैं, वो होता क्यों है? आप यदि शरीर ही हो तो इसको मरने मत दो ना। एक कोई ऐसा तत्व है ना जो शरीर के रहते हुए भी निकल जाता है। तो वी आर नॉट ओनली अ बॉडी, वी आर नॉट ओनली अ सोल। तो दोनों में हमें जीना चाहिए। शरीर को भी संभाल के रखना और आत्मा को भी संभाल के रखना है। हार्डवेयर को भी ठीक रखना है, सॉफ्टवेयर को भी ठीक रखना है, आउटर लुक भी ठीक होना चाहिए और इंटीरियर भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं योग में एक्सरसाइज को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ, पोस्चर्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ, मेडिटेशन को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी। तो इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में सोचो तो आज का एक शब्द मैं दूँ, समग्रता में सोचो। किस चीज़ को कैसे सोचो? समग्रता में, इंक्लूसिव्स, इंटीग्रेटेड, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए किसी भी संदर्भ में। स्वामी जी, अपार्ट योग के अलावा क्या आदमी सवेरे मॉर्निंग रिचुअल्स करे जिससे कि पूरा दिन हेल्दी और एनर्जेटिक बीते? अब ये एक अलग प्रश्न है। योग से हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंद, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, हमारे अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे सब एनर्जाइज हो जाते हैं और हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। योग को टोटलिटी में देखना, मैं वापस कह रहा हूँ, केवल एक पार्ट को नहीं देखना। और इससे एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ हम अपने भीतर और बाहर देख रहे हैं ये इस जगत का एक छोटा सा अंश है। मैं इसको शतांश भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। द विजिबल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, आवर बॉडी एंड दिस होल विजिबल यूनिवर्स इज द पार्ट ऑफ 1% ऑफ दिस यूनिवर्स। इसके अलावा 99% तो इनविजिबल है। ये सारा आकाश, ये जितना भी ब्रह्मांड हम देखते हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जितना दृष्ट है उससे अनंत गुना अदृष्ट है। तो ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, ये अदृष्ट के साथ हम अपनी कनेक्टिविटी जोड़ते हैं। द कनेक्शन विथ इनविजिबल पावर, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ रिचुअल्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें कुछ लोग दीप जलाते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग कुछ मंत्र पाठ करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग मौन रहते हैं। तो मेरे को जितना समझ में आया, क्योंकि इतना बड़ा है ये सारा संसार, कम से कम एक दिया जरूर जलाना चाहिए घर में। और जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य है तो उनको अखंड दीप जलाना चाहिए। और जिनको करना आता है उनको हवन करना चाहिए। सारी जितनी भी अदृश्य शक्ति, अदृष्ट सकारात्मक शक्तियाँ, 2 तरह की पावर्स हैं इस ब्रह्मांड में, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हवन करना चाहिए या दीप जलाना चाहिए। उसके बाद जिसके गुरु परंपरा में जैसे जिसको सिखाया गया है, देवी देवता, हमारे यहाँ ग्राम देवता भी होता है, कुल देवता भी होता है, अलग अलग प्रकार के, फिर गुरु परंपरा में, संप्रदाय परंपरा में अलग अलग देवताओं की उपासना की जाती है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो भी अपने कुल देवता, ग्राम देवता और जो भी देवी देवताओं की उपासना करनी है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। उससे अदृष्ट के साथ आपका कनेक्शन रहता है। और जीवन में 3 चीज़ें होती हैं। एक, अनिष्ट का निवारण, ये सब करने से। दूसरा, इष्ट की प्रसन्नता।
अनिष्ट का निवारण, इष्ट की प्रसन्नता। और यदि किसी को कोई बहुत समर्थ गुरु मिल जाए, कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए, तो आपको जीवन में सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अब आप जिस भी श्रेणी में अपने आप को मानते हो या जैसे आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। बहुत खूब स्वामी जी। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में आप कहते हैं, चाहे प्राणायाम हो, चाहे कपाल भारती हो, चाहे लोम विलोम हो, चाहे वो क्या करते हैं कान में, भ्रामरी उद्गीत, भामरी हो, इसके बारे में थोड़ा हमको, हमारे रोटेरियन दोस्तों को दृष्टिकोण दें। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि 2-3 एक्सरसाइज इनको करके भी दिखाएं। अब अभी मेरे को खाना खिला के लाए आओ जैसा। वैसे मैं खाया पिया भी बिना खाए जैसा लगता हूँ, और कुछ लोग बिना खाए पी भी ऐसे लगते हैं जैसे माल ठोक रखा। तो पहले तो आहूजा साहब को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और आज से नहीं, करीब 1.5 दशक से, आदरणीय जेतली साहब जब थे, ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 15 साल पहले, कि तब से इनके साथ हमारा संबंध जुड़ा। और सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं आना जाना पसंद नहीं करता। अब व्यस्तताएं मेरी ऐसी होगी, मेरे वर्किंग आवर्स 4 AM to 10 PM है। मैं सुबह 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ, और फिर उसके थोड़ा दैनिक दिनचर्या करके 4:30 बजे से करीब 3 से 5 किलोमीटर की रोज़ दौड़ लगाता हूँ। फिर उसके बाद 5 बजने से 5 मिनट पहले योग के लिए आ जाता हूँ, और 10 बजे तक मेरा योग का कार्यक्रम चलता है। 2 घंटे मैं OPD करता हूँ, जो बहुत क्रिटिकल रोगी हैं उनको देखता हूँ। फिर दिन भर अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करता हूँ। इन्होंने बोला नहीं, कुछ भी हो, एक दिन तो आपको, देखो मैं जब बोलता हूँ ये तैयार रहते हैं हर सेवा के लिए, बोले एक दिन मेरे लिए निकालना है, क्योंकि ये दिव्या से और रुचि से, बोले ये तो आप ही के ब्रांड हैं। रुचि का तो IPO लेकर के आ गए। अब जो है दिव्या का IPO लेके आना। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्यारे बालक है हमारे। लेकिन रुचि बहुत सौभाग्यशाली निकली। 650 का शेयर लोन हमने उसका प्राइस रखा था, प्राइस बैंड, और वो 950 में, और अब तो कुछ नया होने वाला भी पता। रुचि का नाम, तेरा नाम नहीं बदलेंगे। हाँ, रुचि का नाम अभी आगे पतंजलि फूड्स होने वाला है। अच्छा, फिर उसमें फूड बिजनेस जाएगा, तो ये तो एक नई उड़ान होगी। अभी जैसे योग में हमने हिस्ट्री कायम की है, ऐसे कैपिटल मार्केट में भी रुचि सोया एक हिस्ट्री कायम करने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। और फिर दिव्या भी, किधर है दिव्या? ये वही है, वही है। अच्छा, कहीं गया नहीं अभी। पत्नी के पीछे रहना चाहिए हमेशा। तो फिर दिव्या का, फिर पतंजलि का, खैर तो मैं तो अभी भी आपको 5-7 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना। जरा सुधीर जी आपकी फूंक देखूं कितनी है। मैं लंगोट पहन के नहीं आया, मेरे को डर लग रहा था। 5 मिनट तक कर ले कोई, बहुत अच्छा। और जो स्वस्थ लोग हैं उनको ऐसे, और जो एकदम अपने आप को ज़्यादा ही ताकतवर मानते हैं तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सारे संसार में चाहे कोरोना फैल जाए, स्वामी राम के देव की तरह आपको कोरोना नहीं होगा। तो इससे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिसको लोअर बैक की इशू हो वो धीरे धीरे करें। अच्छा, ठीक है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, सबसे संवेदनशील बहुत जरूरी है। ये खाली कोरोना की बात नहीं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी पोल्यूशन, कुछ भी खराब जाता है, सबसे पहले असर यहाँ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, भी आप लोग तो पढ़े लिखे हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दूसरा, कपालभाति। एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज,
यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स तक, फिर इधर गॉल ब्लैडर, इधर दोनों राइट लेफ्ट लंग, हार्ट की सारी आर्टरीज, फिर थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के, और इसका आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी और सहस्रार तक असर होता, मूलाधार से सहस्रार तक। तो ये अब बात तो छोटी सी है, लोगों को बीमारियां क्यों हैं? 10 कारण बीमारियों के बड़े गिने जाते हैं। उसमें पहला है लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस एक्टिविटीज। जब गति नहीं होगी तो दुर्गति तो तय है ना। जब अंदर से कुछ हिलेगा ही नहीं तो कूड़ा कचरा जमेगा ना। लीवर में, किडनी में, आंतों में, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, लंग में, हार्ट में गति है नहीं तो दुर्गति तय है। तो दूसरी चीज, less oxygen supply is the main cause of all diseases. Low immunity is the main cause of all diseases. Bad habits is the main cause of all diseases. Pollution, adulteration और genetic wrong expression, जो हमारे भीतर जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स में म्यूटेशन होता है रॉन्ग वे में, तो वो अलग अलग, किसी को कुछ ना कुछ है ही घरों में, परिवारों में, वो आपके भीतर से एक्सप्रेस हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको आपको स्ट्रेंथन रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ योगी का कम से कम 200-300 साल तक उसका लिवर, किडनी, हार्ट, लंग आदि काम आ सकता है, क्योंकि बॉडी की जो आयु, महर्षि दयानंद ने एक अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बताई कि आदमी की आयु 400 साल हो सकती है, बशर्ते वो ठीक से काम ले ले इससे। तो आप लोग तो 50 साल में लोगों के चेचिस घिस जाते हैं, कमानी टेढ़ी हो जाती है, नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, और पुरुषों के तो बचे हुए हैं थोड़े बहुत, बाल बहुतों की खेती उड़ जाती है। क्यों? तो कपालभाति करें, लाड़ाट पर भाल तेज, फिर अनुलोम विलोम जरूर करें, बिल्कुल ईजी है ना। इससे राइट लेफ्ट ब्रेन, पीट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम एकदम बैलेंस रहता है, और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेज, जो स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन रहते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो अनुलोम विलोम ये पूरे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, नस नाड़ियों को, पूरा जो हमारा अंदरूनी शरीर है, जो इनविजिबल बॉडी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर भ्रामरी और उद्गीत जो है आपको हायर कॉन्शियस में लेकर के चले जाते हैं, और इस हमिंग से अंदर एक नेचुरल डिवाइन हीलिंग होती है। मैंने जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 पर आ गया था, 2 महीने के अंदर 60 किया है भ्रामरी और उद्गीत से। देखने में हल्की से रखते हैं इतना, जिनको नींद नहीं आती थी कतई, माइग्रेन पेन भयंकर रहता था, और ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तमाम तरह की उधेड़ बुन, अंदर तूफान उठता रहता है, एकदम शांत हो जाता भ्रामरी उद्गीत से। और जिनका दिमाग, खोपड़ा बहुत गर्म रहता है, उनको शीतकारी करना चाहिए, बहुत ठंडा हो जाता है। कुछ कहते हैं मेरे दिमाग, खोपड़ा हमेशा गर्म रहता है, ये शीतकारी करना चाहिए, लेकिन पत्नी की तरफ जीभ दिखा के मत करना। नेक्स्ट। स्वामी जी कहते हैं आयुर्वेदा इज साइंस। हमारे इंडिया में तो आयुर्वेदा बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमें बताएं आयुर्वेदा के बेनिफिट्स ओवर एलोपैथिक। आयुर्वेदा को बहुत लोगों को तो ना गलत फहमियाँ बहुत है, अलग अलग बारे में, जातियों के बारे में, मत पंथों के बारे में, प्रांतों के बारे में, अलग अलग संदर्भों में बहुत गलत फहमियाँ हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, मेरे बारे में और ख़ास करके मैंने कहा ना, जो अपने आप को जो सो कोल्ड लिटरेट इडियट्स होते हैं, उनको तो बहुत गलत फहमियाँ होती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैंने बहुत तरह की गलत फहमियाँ पाल के रखते हैं। क्या सुनी सुनाई बातें। आयुर्वेद क्या है? आयु, वेद बने ज्ञान। आयु का बोध जिससे हो वो आयुर्वेद, आरोग्य का बोध जिससे हो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के बारे में कुछ लोगों को तो आयुर्वेद शब्द का ही अर्थ नहीं पता। अब आयुर्वेद के कितने पार्ट हैं, उसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, बस्ती, उसमें नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, उसमें निदान, उसमें उपचार, उसमें पथ्य, उसमें सारी पंच महाभूत चिकित्सा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, ये सारी चिकित्साएं। तो आयुर्वेद का मतलब
जो भी निसर्ग है, नेचर है, प्रकृति है, उसके साथ तादात्म्य करके जीना। तो अब इसमें मेडिसिन्स में रस रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, ये है सब। हमारे पास करीब 500 साइंटिस्टों की टीम है और आयुर्वेद के जो अलग अलग घटक हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उसके ऊपर हमने काम किया और ये देखा आयुर्वेद की हर चीज़, हर पहलू उसका, वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। अब 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गए लोगों को बीपी की दवा खा रहे हैं, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवा खा रहे हैं और कोई ठीक नहीं हो रहे और उनके दवाइयों को कॉम्प्लिकेशंस, माने आप कोई भी नेट के ऊपर किसी दवाई के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ करके देख रहे हो ना, एक दवाई नहीं खा सकते आप। क्यों खा रहे हो? बस खाए जा रहे हैं, वो खाता है, वो खाता है, वो खाता है, बस खा रहे हैं। तो आयुर्वेद विशुद्ध रूप से एक जीवन शास्त्र है। आपको अलग अलग जड़ी बूटियाँ, अलग अलग पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और इन टोटलिटी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको आप अडोप्ट करते हैं। अब इसमें ज़्यादातर लोग क्या है, कुछ लोग क्वाथ पीते हैं, कषाय पीते हैं, कुछ लोग ताज़ा जड़ी बूटियों का रस खाते पीते हैं, कुछ लोग गोलियां खाते हैं, कुछ लोग रस रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेव, आसा, वरिष्ठ पीते हैं। तो हर पहलू आयुर्वेद का वो बहुत ही साइंटिफिक है, बशर्ते उसको ठीक से किया जाए। देखो हर जगह आपको क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। आप यदि किसी चीज़ की प्रामाणिकता नहीं बरकरार रखते तो आयुर्वेद कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। आयुर्वेद कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। यदि आयुर्वेद साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च एविडेंस के साथ आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं। और एक बात मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने, आने वाले 10-15 सालों में पूरे वर्ल्ड में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको मैंने एक शब्द दिया इंटीग्रेटेड पैथी। आज इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वेलनेस कह करके बोल रहे हैं और मैं आज शाम को पहुंच जाऊंगा। कल सुबह दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर, करीब 2000 लोगों की कैपेसिटी वाला, कल ही शुरू कर रहा हूँ। किसी को एक्सपीरियंस करना हो तो आ जाना। स्वामी जी, you are a master in whatever you do, from yoga to wealth creation. Your journey has been phenomenal. How was Patanjali started? सुधीर जनरेटर कब शुरू किया था? इनका मेरे को किसी ने बोला वो सुधीर जी बात करेंगे, मैंने कहा वो जनरेटर वाले के बनाऊंगे। कब किया था आपने? I started somewhere around 1980. ओह 1980, बहुत पहले शुरू कर दिया था। हमने स्टार्ट किया 1993 में, हम हरिद्वार आए थे दरअसल। तो 30 साल की हमारी टोटल जर्नी है। उसके बाद एक एक करके हम अपना कार्य शुरू करते गए। तो 30 साल की हमारी जर्नी है। उसमें जैसे हमने कभी, कुछ लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव भगवे कपड़े पहनते हैं, आचार्य बालकृष्ण जी सफ़ेद पहनते हैं, इसमें भी कोई ना कोई इनकी स्ट्रेटेजी है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है साहब। हम लोग गुरुकुल में सफ़ेद कपड़े में रहते हैं, सन्यास ब्रह्मचारी और आचार्य होते हैं, सन्यास सफ़ेद में रहते हैं, सन्यासी होते हैं। हमने जो जैसा हमको लोगों ने मांग की, डिमांड की, वैसे हम करते गए। लोगों ने कहा कि आप आयुर्वेद जानते हैं तो हम औषधियाँ दे दो, हमने औषधियाँ दे दी। उन्होंने कहा कि क्या एमएनसीज़ का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता? स्वदेशी की बात तो 1902-3 के भंग के बाद देश में बहुत ज़ोर शोरों से शुरू हो गई थी। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी महात्मा गांधी ने। और मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने स्वदेशी की बात तो बचपन से की है क्योंकि महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को पढ़ा है, तो सब स्वदेशी की बात करते थे। भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं सुबह से शाम तक आप जितने प्रयोग में लाते हो वस्तुएं देखो कि क्या भारत की बनी हुई हैं, क्या गाँव की बनी हुई, किसी गरीब को उससे काम मिलता है। तो ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आए। तो बोले शुरू तो कर दें, लेकिन बोले इनके सामने टिकेगा कौन? बड़े बड़े ये साहब कोई छोटे नहीं है लोग, ये बड़े ताकतवर है, लाखों करोड़ का साम्राज्य है। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहता हूँ, कितना ही बड़ा कोई लक्ष्य हो, मेरे 2 शब्द हैं जिंदगी के, विकल्प रहित संकल्प। एक बार सोच लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला? पहला क्या बोला था? विकल्प, जोर से तो बोलो, विकल्प रहित संकल्प, और दूसरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये थोड़ी हिंदी भी सीख लो। तो हमने ऐसे ही शुरू किया कि करना है। तो शून्य से जो है ना,
आप अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रैच से शुरू किया, हमने जीरो से स्टार्ट किया, हमने फर्स्ट से शुरू किया, अर्शतक की जो पूरी यात्रा है। तो हर काम को प्रामाणिकता से लेकिन करने की आपकी आदत होनी चाहिए, तो हम करते गए। हाँ, शुरू में जब हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था फूड पार्क बनाने का, ये हिंदुस्तान का पहला फूड पार्क है और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि का है, वर्ल्ड का। तो वैसा करने के लिए एक बार थोड़ा साहस तो चाहिए। अब मैंने कहा भैया ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो। बोले, मैंने कहा ऐसा करो, ये एक पता नहीं शुरू में मैंने बोला था 1 करोड़ या 2 करोड़ ट्यूब बनाने वाला प्लांट लगा दो दंत कांति के लिए। उसने बोली बिकेंगी गाय तो मैंने कहा लगा दो, बिक भी जाएंगी। तो एक साहस भी होना चाहिए बड़े काम करने के लिए, उस तरह का आपका सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें बिल्डअप हो गई और आज मैं कह सकता हूँ हमने आज एक यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सब विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत बढ़िया। इसको करने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत बड़ा इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा आपकी रीच चाहिए, कस्टमर बेस चाहिए, इसके लिए बात है करोड़ों लोगों की एक ब्रांड के प्रति लॉयल्टी, ट्रस्ट चाहिए। ऐसी चीज़ों को खड़ा किया जाता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों में ये साहस किसी न किसी दिन तो आएगा और थोड़े 2-3 वर्ष इंतजार कीजिए, पतंजलि यूनिलीवर से भी बड़ा ब्रांड होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, वंडरफुल, वेरी गुड। ये पतंजलि नाम कहाँ से रखा आपने? दरअसल एक ऋषि हैं, उन्होंने योग दर्शन लिखा, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान में जो योग दर्शन है ना, तो योग की जो पूरी फिलॉसफी ये तो सदियों से था, लेकिन उसको उन्होंने पूरा एक जगह उसको संग्रहित कर दिया। तो महर्षि पतंजलि योग के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं, उद्धारक हैं। तो योग में सबसे बड़ा नाम महर्षि पतंजलि का है। यूँ तो आदि योगी शिव को मानते हैं, लेकिन योग की सारी परंपराओं को सूत्रबद्ध किया उन्होंने, तो बहुत बड़ा नाम है ये। तो बहुत लोगों ने कहा, जब मैंने पतंजलि स्टार्ट किया था तो बहुत से पढ़े लिखे लोग जो अलग अलग ब्रांड्स को सलाह देते हैं ना, बोले स्वामी जी आपका नाम तो सारा देश जानता है, आप पतंजलि का नाम तो नहीं जानता कोई सारा देश, गिने चुने 1% भी लोग नहीं होंगे जो जानते होंगे, तो बोले आप अपने नाम से ब्रांड रखो। मैंने कहा नहीं, मैं ऋषियों का अनुगामी हूँ, वंशधर हूँ, मुझे मैं व्यक्ति पूजा का विरोधी व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। तो महर्षि पतंजलि एक ऋषि का नाम है। अच्छा, तो ऋषियों को गौरव दिलाने के लिए, कि गौरव हमारे ऋषियों को मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। जेनरिक नेम है यदि आप उसको जो है लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलें, लेकिन जेनरिक नाम को हमने ब्रांड बनाया। और अब पूरी दुनिया में कोई भी बोलेगा पतंजलि तो कम से कम ऋषि का नाम जुबान पर आएगा, तो कोई सर्च करेगा तो महर्षि पतंजलि के सूत्रों तक भी पहुंच जाएगा, सामान खरीदता सूत्र भी पहुंचेगा किसी। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने स्ट्रैटेजी की बात की, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बिकॉज आपने खाली, जैसा आपने कहा कि आपने हिंदुस्तान की कंपनियों को नहीं हिला दिया, आपने तो वर्ल्ड की कंपनियों को हिला दिया, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनी MNC कहते हैं। कोई स्ट्रैटेजी तो होगी? स्ट्रैटेजी होती तो यहाँ नहीं बैठा होता। नहीं, स्ट्रैटेजी तो होगी। क्योंकि मेरे 1 घंटे की कीमत आज कम से कम 1 करोड़ रुपए है। ए दिव्या, कितना दिया तूने? बिल भेज देना इसको, बिल भेज देना स्वामी जी, आ जाएगा आपको। तो देखो, 2 बातें होती हैं। कार्य को कुशलता से करना चाहिए, योगा कर्मसु कौशलम, स्किलफुल होना चाहिए हमारे। देखो काम कैसे होने चाहिए, मैं काम के बारे में, अब फिर स्ट्रैटेजी, इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। आप लोग जिसको स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, एक CAC बैलेंस शीट बना लेते हैं, लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, मार्केट साइज क्या है, उसमें हमारा मार्केट शेयर कितना होगा, फिर कैसे होगा, 5 साल का क्या है, 10 साल का बिजनेस प्लान क्या है। और मैंने देखा जो ऐसे करके जो बहुत लॉस एंड प्रॉफिट की बैलेंस शीट बना करके जो स्टार्टअप करते हैं ना, 99% को भट्ठा बैठता है। तो इसको स्ट्रैटेजी, ये जो बोर्ड रूम्स में बैठ के, AC रूम्स में बैठ करके स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं, मैंने इस देश में पहले 20 साल पसीना बहाया, उसके बाद ब्रांड बनाया। बहुत बढ़िया। क्या बोला? 20 साल खून पसीना बहाया, उसके बाद में ब्रांड बनाया। ब्रांड बनाया नहीं, लोगों ने कहा कि हमें कुछ दो। तो
बाकी जो स्ट्रेटेजी क्या होती है, कार्य को विधि पूर्वक करना चाहिए, रीति पूर्वक करना चाहिए, नीति पूर्वक करना चाहिए, प्रीति पूर्वक करना चाहिए, निर्भर होकर के करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं उसको नॉलेज के साथ करना चाहिए, पैशनेट होकर के करना चाहिए। उस काम में अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए, सब कुछ झोंक देना चाहिए। और उस कार्य को निरंतरता के साथ 1, 2, 5, 10 साल और करते रहना चाहिए। 100 साल का सोच करके करना चाहिए। और कोई भी काम ऐसा ना करो कि आने वाले 5, 10, 20, 25, 50 साल आपके अंतिम श्वास तक आपको करके पछतावा हो। ऐसा कोई भी काम मत करना, न बिजनेस, ना कोई और कोई वाणी, ना कोई व्यवहार, ना कोई कृत्य ऐसा करना जिससे कि आपको आत्मग्लानि हो, आप अपने आप को फेस ना कर सको। ऐसा जिंदगी में कभी कोई काम मत करना। तो ये है स्ट्रेटेजी लाइफ की। बाकी तो आप करते जाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आदमी के अधीन है, आप अपना कर्म पूरा कीजिए। भगवान की कर्म फल और न्याय व्यवस्था पर मुझे अखंड आस्था है। मैंने एक दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी देखा है, भूखों मरते लोगों को देखा है, अभावों में, संघर्षों में, अंधेरों में जीते हुए लोगों को देखा है, और मैंने अट्टालिकाओं में बैठे मदांध लोगों को भी देखा है। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, भगवान की कर्म फल और न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं यदि अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो उसका फल बुरा हो ही नहीं सकता। गीता का भी एक कथन है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, समझ में आए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो ठोकरें खा के तो सबको आ जाती है। नहीं नहीं, बहुत समझ में आ गई, बहुत समझ में आ गई। लेकिन ये एक चीज इनमें समझदारी नहीं है। सुन लो, एक बात बताता हूँ, बाकी आगे पूछ लेना। जब भी कोई भी आदमी कुछ भी जिसने लाइफ में अचीव किया हो, यदि आप उसको सुनने जा रहे हो तो साथ में या तो कोई पेन रखो, छोटा सा डायरी रखो, कुछ नोट करो। इतने होशियार नहीं हो कि सारी बातें याद हो जाएं तुम। बहुत बढ़िया कहा आप, बिल्कुल बढ़िया कहा आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। छोटी सी डायरी, छोटा सा पेन साथ में रखा करो। कुछ ने रख रखा है, कुछ ने अपने मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ महिलाएं ज़्यादा समझदार हैं, पुरुष बड़े खड़ूस हैं। चलो आगे ये हंसी मजाक की बात है, इनको कोई सीरियसली मत लेना, और कोई ले भी लेगा तो अपनी ऐसी तैसी कराए, हमारा क्या बिगाड़ेगा। चलो ये मैं थोड़ा हंसी मजाक ऐसे करता रहता हूँ, थोड़ा लोग ना नहीं तो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब आप हंसाए जा रहे हो तो मैं हंसूंगा। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट बाय सेल्फ, और हमारे बहुत यहाँ पे रोटेरियन दोस्त बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हम लोग स्ट्रगल करते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। एंड आई सी पतंजलि मैनेजिंग लो कॉस्ट विद गुड क्वालिटी। आपके पास कौन सा मंत्र है, वो तो शेयर करो हमारे लोगों से। देखो, कॉस्ट को कम करने के 8-10 तरीके होते हैं। एक तो अब शुरू में बड़ा काम करना है तो बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन जब पैसे हो ना तो अगले दिन कर चुका दो। जैसे हमारे पास रुचि सेवा का एपीओ किया, पैसा आया, अगले दिन बैंक वालों से हाथ जोड़ लिए, भाई 8% की 8, 9, 10% की सेविंग तो पहले दिन से हो गई। तो जितना हो सके, कुछ लोग मैंने देखा है कहते हैं जी कर्ज उतना ही लो, बहुत थोड़ा सा लो और तुरंत चुकाओ जितना हो सके जल्दी। नहीं तो अब हम कहते हैं जी 2-3% के प्रॉफिट वाला बिजनेस है, क्योंकि 8-10% तो बैंक को जा रहा है ना। तो जितना हो, कम से कम हो सके बैंकों से कर्ज लेना चाहिए, और लेकर के कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी चुका सको। दूसरी बात, अपने शौक बहुत ज़्यादा नहीं पालने चाहिए आदमी को। अब लोगों को ये शायद ना समझ में आए किसी को, लेकिन समझ में तो आएगा एक दिन। आचार्य चाणक्य भी यही बात कहते हैं। कन्फ्यूशियस जो कम्युनिस्टों के प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु उनके, कन्फ्यूशियस जानते हो ना सब, वो भी यही बात कहते हैं। भगवान रामकृष्ण भी यही बात कहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में तप, अपरिग्रह, कम से कम विलासिता के सामान प्रयोग करो, बहुत ज़्यादा शौक मत पालो। तो हमारे कोई शौक नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना गाड़ी, ना घड़ी, ना मोबाइल, और कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कभी था ही नहीं। ठीक बात है। तो ये सब मैंने सुना है, लोग इन्हीं चक्करों में बर्बाद होते हैं। आज अपनी गर्लफ्रेंड को ये देना है, पत्नी हो गई तब भी गर्लफ्रेंड पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो पीछे बिगाड़ रखी थी। अब अच्छा वो तो छोड़ दे, वो कहते ना, एक वो नदी में बहा जा रहा था कंबल,
तो बोले भाई जो है वो आदमी से बोला कि भाई कंबल को छोड़ दे, तू क्यों डूब रहा है? बोले मैं कंबल को तू छोड़ दो, ये कंबल छोड़े तो उसको भालू ने पकड़ लिया था। तो ये वो भालू कंबल जैसा लग रहा था। तो ये होता क्या है, हम लोग ना कुछ अनावश्यक खर्चे पाल लेते हैं ज़िंदगी में। कभी भी आपको यदि बहुत ऊंचाइयां पानी है ना, आपको विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। फिर लोग कहेंगे फिर करे किसके लिए? यदि ऐश नहीं करनी तो करे किसके लिए? ऐश करके तुम अपनी ऐसी तैसी करवाते हो। ऐश करके क्या करते हो? तेज, जैसे बहुत से लोग यहाँ शुरू में मैंने बोला ना अंदर क्यों नहीं जा रहे, बोला अंदर ना अभी चीलिंग कम है। तो अब हम पसीने में रहने वाले लोग हमको कहीं बैठा लो, जितना तो जितना ज्यादा एसी में रहोगे उतना तुम्हारे शरीर अकड़े रहते हैं। मैं एसी यूज नहीं करता, इसलिए नहीं कि मुझे कोई सेविंग करनी है लाइट की, उससे शरीर खराब होता है। मैं हीटर यूज नहीं करता क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है और इससे बीमारियां होती हैं। मैं कोई 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार के, मैंने सुना है 5-5 लाख के भी जूते आते हैं। क्या कुची पुची लूची क्या है? तो ये अरे भाई ये खड़ाऊ देखो कितनी बढ़िया है एकदम, हाँ? बहुत जोरदार है। बस उधर भी दूसरा भी काम कर देती है कभी कोई काम है। तो देखो कोई शौक पाल लेते हैं लोग। फिर कुछ लोग सबसे बाद में खर्चा करना चाहिए घर पे, क्योंकि घर जो है वो मूवी कोई वो जो है एक तरह से डेड प्रॉपर्टी है आपकी। लोग सबसे पहले 5 करोड़ का घर खरीदेंगे। अरे भाई आज थोड़े 10-20 हज़ार के किराए में रह ले, पहले एक बार वेल्थ क्रिएशन कर ले, उसके बाद ले। गाड़ी 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की, और 2 करोड़ वाली गाड़ी जब उसका मेंटेनेंस आता है ना 2-3 बाद में, 5 से 10 लाख का तो मेंटेनेंस आता है। आदमी अनावश्यक चीजों में खर्चा करता है, तो सेविंग करनी चाहिए। कम से कम विलासिता के प्रयोग इस्तेमाल, सादगीपूर्ण जियो, आप बड़े सुखी रहोगे। अच्छा खाओ पियो, खाने पीने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा खाने का मतलब स्प्राउट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये गंद खाने का है, इसी को खाना मान लेते हैं। तो सेविंग करो। दूसरा लीकेजेज, हर इंडस्ट्री में बेईमान लोग भरे पड़े, खास करके परचेजिंग के अंदर सबसे ज्यादा बेईमान लोग होते हैं हर इंडस्ट्री में। 2 से 5%, मतलब हर इंडस्ट्री में जो भी सेल्स और परचेजिंग की जिनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो सब जगह बेईमानी होती है। तो आप कोशिश ये करो कि जहाँ बेईमान लोग हैं उनके ऊपर आप निगाह रख सको, और उसके लिए आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। जो लोग एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठ करके बिजनेस या इंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहते हैं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ग्राउंड पर जाना पड़ेगा आपको। जो भी बिजनेस कर रहे हो, एंड टू एंड आपको नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर बिजनेस कौन डुबोते हैं? सेठ लोगों के बच्चे, क्योंकि उन्होंने कभी काम तो करके देखा नहीं होता। ठीक बात है। कहाँ क्या काम हो रहा है। इसलिए इसमें टाटा की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अब तो शायद पता नहीं है कि नहीं है। नीचे से लेकर के, सुई से लेकर के और जहाज तक कुछ भी बन रहा है आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे होता है। आज पतंजलि में कोई भी चीज हो रही है, 100% नॉलेज स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को है। कोई हमको धोखा नहीं दे सकता, और कहीं पर भी लीकेज नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को करके जिस बिजनेस के अंदर अडानी को 3% प्रॉफिट होता है, 3.2 और 3 व्हाटएवर, उसी में डबल प्रॉफिटेबिलिटी पतंजलि की है। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। स्वामी जी, आपने चर्चा की एक्विजिशन की, रुचि सोया की। आपने थोड़ा बताया कि आप इस कंपनी को आगे कहाँ ले जाने वाले हैं। एक्चुअली रुचि सोया, let me tell you honestly, was a landmark decision by Patanjali and which took the entire industrial world by storm. We would like to know more about your vision for that company. जब मैंने खरीदी थी तो मुझे सब बेवकूफ कह रहे थे।
बोले स्वामी रामदेव का दिमाग खराब हो गया, अब डूबेगा। ये 99% लोगों की ओपिनियन थी। मेरे जितने भी काम है ना, अब वैसे तो इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे को हरिद्वार जाना है। मैंने जितने भी काम किए 99% लोग मेरे अगेंस्ट थे। जब मैं घर से निकला 99% लोग मेरे अगेंस्ट, ये बाबा बनेगा, भीख मांगेगा। जब मैं सन्यासी बना, अरे बोले अभी इसकी उम्र क्या है, ये सन्यासी बनेगा। अब तो मैं करीब शायद 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ सन्यासी, है? तो 28 ईयर्स का सन्यासी हूँ। सन्यासी बना तो मेरा सबने विरोध किया, योग कराया तो विरोध किया, बोले ये क्या है योग। जब मैंने ये प्रोडक्ट शुरू किए तो लोगों ने विरोध किया, हर काम में। अब ये रुचि से एक्वायर किया, लोगों बोला बहुत बेवकूफ़ है स्वामी रामदेव। फिर जब मैं शेयर मार्केट में, मुझे तो पूरा सीखना पड़ा ना। हम तो शेयर मार्केट को ये मानते थे ये तो जुआ है, गांव में हमने सबने यही सुन रखा, यही है, हाँ, ये जुआ वाला काम है, इनिशियली यही कहते हैं। तो फिर मैंने देखा, अरे भाई वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे कोई प्रोग्रेसिव तरीका है दुनिया में तो ये कैपिटल मार्केट है। लेकिन असूलों पर चलो, लोगों असूलों पर नहीं चलते, इसलिए बर्बाद होते हैं। पहले हमने खरीदा तब लोगों ने कहा बेवकूफ़ी का काम किया। जब मैंने कहा कि 650 का इसका प्राइस ब्रांड, बोले कोई दे ही नहीं सकता 650। फिर जब हमने लॉन्च कर दिया तो बोले ये इनसे संभलेगा नहीं, ला ही नहीं सकते। एक बेवकूफ़ ने हिस्टोरी छापी एक बड़े से अखबार में कि स्वामी रामदेव को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, और स्वामी रामदेव गया काम से। जब हम लेकर के आ गए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, बोले स्वामी रामदेव ने ये कैसे कर दिया। अभी भी बहुत से लोगों को सपने में स्वामी रामदेव दिखता है, ये हो कैसे गया। और वो भी जब LIC भी नहीं ला सका, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और 2-2.5 हजार नीचे आ गया था सेंसेक्स, उस समय हमने लॉन्च किया। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये 950 के एक स्टेबिलिटी कैसे आ गई। लगभग थोड़ी देरों के बाद 1 महीना हो जाएगा, ये कैसे आ गई स्टेबिलिटी। अरे मैंने कहा भैया अभी तो फाउंडेशन डाली है, जब भवन बनेगा तब तुम अपनी आंखों को तब तक संभाल के रखना। तो चीज़ों को आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हम जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का एबिटा करेंगे इन दिस ईयर, इन दिस फाइनेंशियल ईयर। वंडरफुल, अच्छा, हाँ 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 हाँ, हम वेरी गुड। तो हमको क्या चिंता है, हाँ। हमको पता है कि हम इसके अंदर करीब 15 लाख एकड़, 15 लाख एकड़ हम इसके अंदर पाम प्लांटेशन करेंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस है ना। हमको पता है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड न्यूट्रिला को करने वाले हैं, क्योंकि सारी दुनिया विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन C, जिंक और तमाम तरह के प्रोटीन पाउडर्स, और माताएं बहनें तो कोलेजन की दीवानी है। बूढ़ी नहीं होना चाहती था, हमने इनके लिए भी कोलेजन प्रास ब्लैक में बिकता हमारा, क्योंकि हमको पता है सब सेठियाओं की औरतें यही खाती हैं। तो जवान रहने के लिए तो हमें पता है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बनेगा, और बना दिया हमने उसकी। आज जो है OTC की तरफ बिक रहा हमारा न्यूट्रिला। 80% लोगों को विटामिन D की डेफिशिएंसी 1 महीने में हम ठीक कर देते हैं। और आपको भी भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, वैसे आपके तो गाल बड़े जोरदार तो हमको जब पता है कि हमारा ब्रांड अच्छा है और हमारा विजन क्लियर है और मेहनत करनी है, चक्करबाजी कुछ है नहीं, और हौसला इतना है, देश नहीं दुनिया जीतने का हौसला रहा। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया से मेरे को ख्याल आया कि आप योग को पूरे संसार में ले गए, यहाँ तक कि आज हम लोग योग इंटरनेशनल डे मनाते हैं। ये आपने कैसे अचीव किया? लोगों का जिसमें फायदा होगा ना, वो लोग काम करना शुरू कर देते। लोगों को क्या क्या खिला दिया लोगों ने। अंडा खाना सिखा दिया। अंडा कहाँ से निकलता है भाई? मुर्गी के आगे से कि पीछे से? और होता क्या है? एग, मतलब एग लेडीज़ को भी बनते हैं ना मेंस्ट्रुएशन के बाद। तो क्या अंडा, क्या मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन है, थोड़ा बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसका एक प्रोसेस है।
लोगों को अंडा खिला दिया लोगों ने प्रोटीन के लिए, और अलग अलग प्रोटीन्स के लिए अलग अलग मीट, फिर अलग अलग विटामिन B12, कैल्शियम, ओमेगा के लिए मछली का तेल फलाना, और लेडीज़ को सूअर और मछली का वो निकाल करके बोले आप कोलेजन पाउडर खाओ, आदमी को ये फ़ायदा होगा, ऐसा करके उसको कुछ भी बेनिफिट किसी भी चीज़ को उसकी मार्केटिंग होगी। मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया। आप योग करोगे तो आपका BP, शुगर, थायराइड, वेट, ये सब चीज़ें, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मेरी जिन्होंने बात मानी उनको सब फायदे होने शुरू होगी। मेरे बारे में बहुत से लोग बहुत बुरा बुरा सोचते हैं और बुरा बुरा करने की भी कोशिश करते हैं, लाख कोई बुरा सोचे, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं उससे लोगों का फायदा हो रहा है और भला हो रहा है और होगा, इसलिए मैं एकदम निश्चिंत होकर के अपना काम करता हूं। और आज जैसे हिंदुस्तान कर रहा है, आखिर दुनिया के भी बहुत सारे हिस्से अब इससे जुड़ चुके हैं। आने वाले करीब 50 साल से ज़्यादा तो मैं अभी ज़िंदा रहने वाला हूँ, और मेरा लक्ष्य होगा कि आने वाले 20, 25, 50 सालों में पूरी दुनिया के करीब 90% से लेकर 99% लोग योग करें। फायदे का काम है, और क्या है इसमें? सारी दुनिया बेनिफिट के ऊपर काम करती है, मजहब के पीछे नहीं है लोग, मुनाफे के पीछे हैं। बहुत बढ़िया, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी चैनल को कब से ज्वाइन करने वाले हैं? चलो आगे नेक्स्ट। नहीं नहीं, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने मेंटेन किया है कि पतंजलि के प्रॉफिट आप सोशल कॉज की तरफ खर्च करेंगे, कि ये हमारा कमिटमेंट है। इसके बारे में कुछ इंसाइट दीजिए हमको। इंसाइट ये है, देखो हम काम क्यों कर रहे हैं भाई, अपना कोई फैमिली तो है नहीं है, कोई संसार में जिसको भौतिक वारिस कहते हैं, लड़का लड़की, वो तो हमने बनाया नहीं, तो हमारे सन्यासी हैं, बाकी देश हमारा। तो हम, हमारे पास जो भी कुछ है किसने दिया? देश के लोगों ने दिया। किसके लिए दिया? देश के लिए दिया। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, जो भी लिस्टिंग वाली प्रोसेस में तो हम इसलिए आए क्योंकि रुचि सोया एक लिस्टेड कंपनी थी, बाकी औरों को भी हमने देखा कि जब भाई ये इंडस्ट्री आपके एबिटा का जैसा, जिस बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जिस जैसा एबिटा होता है उसका 20, 30, 50, 70 और 100% एबिटा का देता है। तो फिर हम उधर चले गए, फिर करेंगे क्या इसका? तो हाँ, तो क्लियरिटी नहीं होगी तो नहीं तो दो दूसरे गच्चा मार देंगे। इतना बड़ा बिजनेस तो संभाल नहीं सकते। तो हमने कहा कि ये सब करना क्या फिर? तो मेरे मन में एक सपना था हमेशा कि ये वॉरेन बफेट है, जुकरबर्ग है, बिल गेट्स है, ये सब लाखों लाखों करोड़ की चैरिटी करते। कितने की? 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1-1 लाख करोड़ की चैरिटी, ऐसे उसने कर दी, उसने कर दी। मैंने कहा मैं भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों की, सब लगभग 99% को स्वामी रामदेव जानता है। मैंने मिला सबसे, मैंने कहा भाई हम देश में ऐसा हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एनवायरनमेंट में ये ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं, आप कुछ मदद करो। तो किसी ने 11 लाख का चेक फाड़ने के लिए बोला। मैंने कहा इतना तो मैं भिजवा दूंगा, अपने बंद कर ले। किसी ने 21 लाख का, एक को एक दो मिले, राहुल जी थे वो उन्होंने एक जो है थोड़ा उनमें साहस था, राहुल बजाज साहब। खैर, तो मैंने कहा भाई ये तो महादीन है। महादीन समझते हो ना? मतलब जो लोग हाथ तंग दीन होता है, दुखी से महादीन। दो आदमी बैठ के चाय पी रहे थे, चाय में मक्खी गिर गई, तो एक आदमी ने मक्खी उठाई, फेंक दी और चाय पी ली। बोले इसने तो चाय तो पी थी, कोई बात नहीं। दूसरे ने मक्खी उठाई, उसमें थोड़ी सी मलाई और 1-2 बूंद चाय लगी थी, पहले उसको चूसा। इसको बोलते मक्खी चूस। तो हिंदुस्तान के ज्यादातर पैसे वाले मक्खी चूस जब मैंने देखे, महादीन, मैंने कहा इनसे बात नहीं बनेगी। मैंने कहा मैं लोगों से दान लूंगा। यहाँ भी मुझे दान देने वाले काफी बैठे हुए हैं। एक तो ये बैठे हुए हैं, जब ये कितने साल के हो गए हैं? 76। जितने साल के हुए उतने लाख का इन्होंने मुझे चेक दिया, अभिनंदन है इनका। यहाँ भी मुझे 7 लाख, 10 लाख, 1 लाख। अभी एक भाई आए थे, बोले हमने बाबू जी जब शुरू किया था आपने 50,000 भेजे थे। कौन थे भाई साहब? वो पीछे बैठे हुए हैं, अतुल चौक। अरे कहाँ हैं 50,000 वाले?
पति पत्नी दोनों आए थे ना, हाँ। बोले हमारी मम्मी तो घर में आपके प्रोडक्ट के अलावा कुछ लाने ही नहीं देती है बेटी, हाँ। बेटा 50,000 और भेज देना। फिर ना वो लाइफ मेंबर बन जाओगे तो फिर आपको हर साल इनवाइट करेंगे ना, फिर पतंजलि वेलनेस में आपको पतला भी करके भेजेंगे, रिटर्न गिफ्ट देंगे ना आपको। तो मुझे लोग ना ऐसे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 देने वाले लोग हैं, तो उससे मुझे करीब जो भी मैं चैरिटी के काम करता हूँ 10% मुझे मिल जाता है। तो फिर लेकिन मेरे प्रोजेक्ट हैं सब 100 करोड़ से तो शुरू होता है कोई भी प्रोजेक्ट, फिर 500, 1000, 10,000 करोड़। अब जैसे इंटरनेशनल मुझे ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पतंजलि ग्लोबल, मुझे ये मेरे प्रोजेक्ट 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ के, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? तो यही तरीका है। तो हमने ये सारे जो सारा ये जो पूरा अलग अलग कंपनियां हैं इसका एक ट्रस्ट बना दिया, उस ट्रस्ट के अंदर सारा जो है इसको डोनेट करवा दिया। तो कोई आपको ऊपर से दिखेगा कि ये इस कंपनी का ये शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है, ट्रस्ट ही शेयर होल्डर है और उसका एक ही लक्ष्य है भारत माता की सेवा और कोई दूसरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सेवा कर रहे हैं आप, इसका मतलब है। स्वामी जी, ये योग से और वेल्थ क्रिएशन से मैं पोल्यूशन पे आता हूँ। हमारे इंडिया में पोल्यूशन एक अपने आप में प्रॉब्लम है, और जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। इसको कैसे काउंटर करें? तो अपने घरों में थोड़े पेड़ पौधा लगाओ, घरों में एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आजकल तो बोनसाइज ही हो जाते हैं ना छोटे छोटे ऐसे सब वो सब लगाओ, तो अच्छा रहेगा। आजकल घरों में ना ऑर्नामेंटल से लगाते हैं, मेंटल हो रखे हो क्या? ऑर्नामेंटल लगाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाओ, और जितना हो सके पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ किया करो। आपको अच्छे 99% हमारी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट है 100% क्वालिटी कंट्रोल के साथ। तो पोल्यूशन में ये सार्वजनिक जिम्मेदारी है। दरअसल लोगों में ना गाड़ी रखने की होड़ लगी हुई है, पत्नी की अलग गाड़ी, पति के अलग, बच्चों के अलग, बहू के अलग, थोड़े पैसे आते ही बस पता नहीं क्या लोगों को शौक है। मेरे को तो मैंने 5 करोड़ की गाड़ी से लेकर के और 1 लाख तक की सबसे छोटी गाड़ी आती थी पहले, छोटी सी मारुति, और ये 1-1.5 लाख की नैनो पैनो, और उससे पहले भी जो मारुति की सबसे छोटा मॉडल होता सुजुकी, मारुति सुजुकी थी। हाँ, मारुति सुजुकी और मारुति संदूक जैसी होती है छोटी सी, वो छोटी और पुराने सबसे छोटी वाली सब गाड़ियों में मैंने सफ़र कर रखा। मेरे को तो कोई गाड़ी में फर्क पड़ा नहीं। तो जितनी गाड़ियां हम कम रखेंगे, जितना ज़्यादा हम एसी कम यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी हम कम कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन रुकेगा सार्वजनिक तौर पर। लेकिन अब लोग क्या बात करेंगे? ऑटोमोबाइल के पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात, अरे पराली जलती है उससे बहुत पोल्यूशन है, उससे भी होता है, लेकिन हम खुद उसके लिए जिम्मेदार है। तो देश में अभी ये गहरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, शुद्ध हवा में सांस लेना हमारा संवैधानिक, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, जीने का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार, शुद्ध खाने पीने का अधिकार, इसके ऊपर अभी भारत को और 10-20 साल लग जाएंगे। लेकिन तब तक आपको स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम करो, तो आपकी बॉडी कम से कम जो आप पोल्यूशन खाते हो उसको निकाल सकेगी, इतना आप कैपेबिलिटी अपने अंदर लाओ। तो 1-2 क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बाकी ये भी कुछ पूछने के लिए अभी कर रहे हैं। हम खत्म करेंगे फिर ये पूछेंगे। हाँ वैसे आप बहुत अच्छे हो, एक बार सुधीर जी के लिए ताली बजा दो जिससे कि ये जल्दी माइक छोड़े। नहीं आप अच्छे हो, वैसे बहुत अच्छे, ऐसे हंसी मजाक में कर रहा हूँ। मेरे को ये बताएं कि वी हियर अ लॉट अबाउट द वेलनेस सेंटर ऑफ पतंजलि इन हरिद्वार, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये तो सबके लिए जानने जैसा है। क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड? हमने एक छत के नीचे सुधीर जी, माने योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, करीब हम 500 प्रकार की थेरेपीज कराते हैं। 500 प्रकार की, 100 प्रकार की तो हम बस्ती देते हैं, एनेमा देते हैं, करीब 10-12 प्रकार के मसाजेज कराते हैं, 3-4 तौर तरीकों से हम रक्त मोक्षण कराते हैं। कोई भी बीमारी के लिए 2 तरीके इंस्टेंट बेनिफिट वाले हैं। जैसे रक्त मोक्षण करा दो, एकदम लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लग जाता है। जैसे बस्ती करा दो तो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, ये स्टीराइड और बायोलॉजिकल से भी ज़्यादा काम करते हैं, रक्त मोक्षण और बस्ती।
आजकल स्टीरॉयड क्यों देते हैं? इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। बायोलॉजिकल से आदमी एकदम मरा हुआ सा आदमी दौड़ने लग जाता है। आने वाला फ्यूचर स्टीरॉयड, अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा पता लग गए हैं लोगों को बायोलॉजिकल्स का, तो इससे भी ज़्यादा इफेक्ट है, तो वो हमने किया। फिर जो है स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्तमोक्षण अक्षित अर्पण, हमने अलग अलग प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स हैं किसी का, अब जैसे अलग अलग प्रकार के हम जड़ी बूटियों के रस पिलाते हैं, कषाय पिलाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में नहीं होता था, साउथ इंडिया में कुछ होता था और वो एक जगह एक ही चीज़ होती थी। कहीं कषाय हम पिलाते थे, कहीं पर पंचकर्मा करते थे, कहीं पर षटकर्मा, कहीं पर नेचुरोपैथी, कहीं पर प्राणिक हीलिंग, कहीं पर और तमाम तरह के एक एक दो दो दुकानें खोल करके बैठे थे। हमने अमेजोन की तरह जैसे वो सारी दुकान एक उसमें खोल दी हमने सारी थेरापियाँ एक छत के नीचे ले आए और उससे इतना बेनिफिट होता है। अब सोचो लोग 6-6 महीने तक लोगों को जगह नहीं मिलती है, 6-6 महीने एडवांस बुकिंग। ओहो, मैं तो खुद आने की सोच रहा था। नहीं, आपके आप तो करवा मेरी सिफारिश कर देंगे। हाँ, सिफारिश कर दे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको जब भी एक बार वक्त मिले, आप लोग 5 स्टार होटलों में जा कर के और वहाँ सड़े हुए कमरों में ऊपर से टिप टॉप करके रखते हैं, उनके भीतर से कितने बैक्टीरिया घुसे रहे जहाँ पर भी ये जो कालीन बिछे रहते हैं ना, अब जैसे यहाँ भी पैरों में कालीन बिछा हुआ है, इसको चेक करेंगे ना, इसकी एक एक इंच में करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे। हम लोग 5 स्टार होटल्स में नीचे ये क्या लगते हैं, इसको कारपेट लगे हुए हैं, फिर चारों तरफ चमक धमक है, और होटलों में जाके क्या करते हैं, सोते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, और क्या होता है। और एक रात के 25-50 हज़ार, एक 5-5 लाख रुपए, ये महाराजा सूट है, ये फलाना सूट है, कुछ नहीं रखा। एक बार हरिद्वार आकर के देखोगे ना, तुम दुनिया में भूल जाओगे कहीं इधर उधर जाना। तुमको लगेगा कि घूमना है तो हिमालय घूमना है, और कहीं रिलैक्स और डिटॉक्स होने के लिए जाना है तो पतंजलि वेलनेस में आना है। तो इसके बारे में थोड़ा कमर्शियली भी बताएं, बिकॉज एक मिनट, आप समझते हैं कि यहाँ पे दिल्ली वगैरह में जैसे अस्पताल जाना होता है तो हम हंसते हैं कि जितना पैसा हो जेब भर के चले जाओ, और जब आओ तो वो जेब खाली लेके आ जाओ। नहीं हो तो फिर वो कार्ड भी खाली हो जाता है क्रेडिट कार्ड भी खाली हो जाता है। आप ये पतंजलि के बारे में खर्चा इतना ही है, एक व्यक्ति का 3,000 रुपये का डेली का खर्चा है। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ हैं, 6,000 हो गया। 3,000 में आपको 10 तो थेरापी मिलती हैं, तो आपकी 3,000 में यहाँ एक मसाज भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती वहाँ मसाज भी होगी, आपकी सिरोधारा भी होगी, अक्षय तर्पण भी होगा, कर्णपूर्ण भी होगा, नस्य भी होगा, रक्तमोक्षण भी होगा, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो है आपको अलग अलग प्रकार के कषाय भी दिए जाएंगे, खाना पीना सब वहाँ पर आपको जो जिसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग है। करीब 50 तरह का हम लोग खाना बनाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा व्यंजन नहीं देते, खाने को कुछ देते नहीं और मरने देते नहीं। किसी को अनार खिलाते हैं, किसी को गाजर चुकंदर खिलाते हैं, किसी को पपीता खिलाते हैं, किसी को वाटरमेलन खिलाते हैं, किसी को लौकी कल्प, किसी को द्राक्षा कल्प, किसी को खजूर कल्प, अलग अलग प्रकार के। तो खाना पीना रहना सहना ट्रीटमेंट सब कुछ उसमें वैद्य का एडवाइस भी आ गया, छोटे मोटे टेस्टिंग में आ गए। तो करीब करीब 3,000 रुपये एक व्यक्ति का लगता है। ये सब अफोर्ड कर सकते हैं इतना, तो इतने में तो कमरा नहीं मिलता दिल्ली में। हाँ ठीक बात है, 3,000 रुपये। फिर और इसमें सारा ट्रीटमेंट उनको हो जाता है। मेडिसिन का खर्चा जो होता है वो अलग से होता है, वो सिंपल होता है, जिसकी जैसा बीमारी होती है वो भी हम अफोर्डेबल प्राइस पर रखते हैं। फिर किसी को लोगों को ना फिर बहुत हाई एकोमोडेशन चाहिए, एकदम बंगला होना चाहिए फर्स्ट क्लास। तो जिनको बंगला चाहिए उनको बहुत बहुत बड़ा घर, मतलब ये जैसे ये इतना हॉल है तो इसके अंदर 2-3 कमरे ही बने, तो वो कमरे 50,000 रुपये का भी है। फिर उसके नीचे का 30,000 का भी है फैमिली रूम, जिसमें 4 आदमी ठहर जाते हैं, और ज़रूरत हो तो 6 भी ठहर सकते हैं। फिर सिंगल रूम जिसमें 4 आदमी ठहर सकते हैं, 2 बड़ा सा रूम होता है, जैसे इसके भी करीब 3 गुना होगा, ऐसा सिंगल रूम भी है। तो अधिकतम 15,000 आप समझ लो पर हेड, और न्यूनतम 3,000। ठीक 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 इतना ठीक। मेरा लास्ट क्वेश्चन, कोविड कम से कम 7 दिन रहना चाहिए। हाँ ये मेन पॉइंट था। 7 दिन के बिना फिर पूरा वो प्रोसीजर ही नहीं होगा ना आपका। करेक्ट। तो 21,000 रुपये लगता है साहब। 21,000 तो आप लोग थोड़ी देर में उड़ा देते हो। नहीं, वो बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है। आई मीन जो आपने कहा कि दिल्ली में तो 3,000 रुपये में कोई कमरा नहीं मिलता है, यहाँ तो पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है साथ में। और हमारे पास अभी जैसे मान लीजिए योगग्राम निरामे में 1,000 लोगों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, तो करीब करीब 1,500 से 2,000 लोग खेती बाड़ी भी करते हैं ना, सब आपके लिए साग सब्जी वहीं उगाते हैं।
1000 लोगों की सेवा में करीब 1500 लोग उसके बैकएंड में होते हैं। तो अभी जैसे नया 2000 लोगों की वेलनेस की कैपेसिटी खोली अभी, तो इसमें 3000 लोग उनकी सेवा में रहते हैं। तो इतने लोगों का जॉब क्रिएशन भी होता है, और उनको रोजी रोटी तो उनको चाहिए ना, उनको भी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैं अपनी कोई फीस नहीं लेता हूँ मिलने की, ठीक ठीक, बात करने की, एडवाइस देने की, फोटो खिंचवाने की। तुमसे ली किसी से? मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे। आजकल कोविड का काल है, हमारे जितने रोटेरियन दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उनसे कुछ शेयर करिए कि कैसे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मेरी तरह से जैसे मैं हूँ, सारे देश दुनिया घूमता हूँ। जब ज़्यादा कोविड बढ़ जाता है तो रोज अणु तेल डालता हूँ, नहीं तो एक बार अणु तेल डालो जब भी घर से बाहर निकलो। आप कहीं भी अनजान जगहों पर जाते हो, अणु तेल, हाँ अणु तेल बिल्कुल 25 रुपए का आता है एकदम, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप रिसर्च पेपर में भी हमने उसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा रखे। अणु तेल खाली पेट नाक में डालो पतंजलि का, और 25 रुपए का मिलता है, और डाबर का लाना हो तो 75 रुपए का मिलता है, और असली की कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरी बात है, खाली पेट सांसारी ले लो, उससे लंग एकदम स्ट्रेंथन रहेगा, और खाने के बाद कोरोनिल या गिलोय घनवटी खा लो, इतनी इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, इतना जबरदस्त। बहुत खूब, ये दोबारा बताएं, ये याद नहीं रहेगा। अणु तेल खाली पेट, इसलिए तो बोला था डायरी लेकर के। हाँ अभी मैंने इसे पूछने लोगों ने, मैंने पहले क्या बताया था? हाँ क्या बताया था? मेरे जीवन के 2 सूत्र, विकल्प रहित संकल्प, राइट। एक ने उत्तर दिया। हाँ, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, इन्होंने ज्यादा याद रखा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो अणु तेल खाली पेट, अच्छा नाक में डालना सुबह पेट। सुबह, खाली पेट, हाँ नाक में उससे क्या थोड़ा सा निकलता है ना, कफ कोल्ड आदि थोड़ा सा साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाएगी। ऐसे भी सिर हल्का रहेगा, भारी नहीं होगा। और किसी को बहुत ही क्रोनिक कफ हो तो एक हमने नया नस्से बनाया है, ज्योतिषमती, मालकांगनी का तेल है, ज्योतिषमती, लिख लो। अभी आपको ऑर्डर में से मंगवाना पड़ेगा क्योंकि सभी स्टोर्स पर नहीं मिल रहा है, 1 महीने बाद मिल जाएगा सब जगह। ज्योतिषमती तेल 20 साल पुराने भी माइग्रेन है, और किसी को तो नाक आँख ये पूरा भरा ही रहता है, कुछ ना कुछ, जैसे पंजाबी बोले ना तो टल्ली हुई रहती कुछ ना कुछ। हाँ तो एंटी एलर्जी दवाई खाए जाओ, ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, एकदम ज्योतिषमती तेल डालो, पूरा खत्म। नहीं तो अणु तेल तो सबके लिए जनरल। फिर खाली पेट स्वासारी वटी, 1 या 2, बहुत कफ कोल्ड सर्दी का जिसका नेचर है ना, कफ का नेचर है, तो 2 नहीं तो 1 स्वासारी और 1 कोरोनिल या गिलोय घनवटी। कोरोनिल या गिलोय घनवटी, गिलोय घनवटी, कोरोनिल क्या है? गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, और कुछ नहीं है। कभी भी खाओ, कि एक छोटी सी चीज है और कुछ नहीं होगा आपको। खाने के बाद कोरोनिल या गिलोय घनवटी और खाली पेट स्वासारी 1 गोली खाओ, और इसको मतलब ये करते रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा, एकदम पक्की गारंटेड बात है, और पूरा रिसर्च और एविडेंस के साथ में बात कहता हूँ कोई। Thank you, Swamiji. Thank you for all the insight. Thank you for all the advice. Now, this brings us to an end of our interactive session. I must say, this interactive session was not being with a yoga guru or a business guru, but to me, you are a superhuman being who is doing in a dedicated manner for the wellness of all the mankind, of all the humanity. बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यार के लिए आपको एक फोटो खिंचवाते हैं। ये मेरे थोड़ा हंसने का हाँ दिमाग है, तो थोड़ा ऐसे ही क्या कर रहे हैं। सीरियसली हम आएंगे हरिद्वार। हाँ पक्का पक्का। हाँ अब आपको, हाँ आपको एंकरिंग के 10% छूट दे दूंगा। फिर वो गिरीश आहूजा जी से लिखा लेना तो पूरे रोटियंस को मिल सकता है। जरा नेक्स्ट। Now we open the session for question answers. So one by one, somebody will give a mic. आप माइक ले लें प्लीज, और अपना नाम और अपने क्लब का नाम बताएं। मैं डॉक्टर सुरेश गोयल हूँ। आई बिलोंग टू RCDM क्लास, प्रीमियर, सॉरी।
स्वामी जी, आप रोज़ाना टीवी पर आते हैं और अपने योग के बारे में सबों को बताते हैं और कई दसियों सालों से लोगों को बहुत बहुत लाभ उससे हो रहा है। अब चूंकि आपने ये जो सफलता अपने व्यापारिक जीवन में पाई है, मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई आप और ज़रूर व्यापारियों को या एंटरप्रेन्योर को या स्टार्टअप्स को ये ज़रूर बताएं कि भाई किस तरीके से वेल्थ जो है क्रिएट की जाती है। इसकी भी एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें योग की तरह। आपके साथ पार्टनरशिप में खोलेंगे। नहीं, इसके बारे में ज़रूर मैं चाहता हूँ मेरे देश में नए एंटरप्रेन्योरशिप खड़े हों। आपने जो कहा उसके ऊपर ज़रूर हम गंभीरतापूर्वक काम करें। जी स्वामी जी, मैं अरुण सिंगल हूँ, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंटर का मेंबर हूँ। मैं भी योगासन करता हूँ, लेकिन मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से अनुलोम विलोम करना आवश्यक है। मैं करता हूँ और मेरे को आराम भी लगता है। लेकिन जब कपालभाति करते हैं तो बोलते हैं नहीं साहब आप ज़्यादा ज़ोर से ना करें, भ्रष्टिका ना करें, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि फेफड़े की सफाई पूरी नहीं होती अगर ज़ोर से ना करें। सिंगर साहब, मैं एक आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। ये जितने भी लोग बातें करते हैं ना, उनको ज्ञान ही नहीं है योग का। मैं सबको भस्त्रिका कराता हूँ, सबको कपालभाति करवाता हूँ और सबकी दवाइयाँ बंद करता हूँ। पहले दिन आते यही काम करता हूँ अपने पतंजलि वेलनेस में। पहले दिन ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, सब पेन किलर, इन्हेलर, स्टीराइड बंद करवाता हूँ। इंसुलिन और ये सब बहुत ज़्यादा स्टीराइड है, उसको थोड़ा धीरे धीरे टाइम लग जाता है। तो सब करें, लेकिन इसमें प्राणायाम ज़्यादा फायदा करता है, ये बात सच है। भस्त्रिका और कपालभाति धीरे करना चाहिए, ये भी सच है, लेकिन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं। और लौकी का जूस पीना चाहिए। किसी को कफ कोल्ड या जोड़ों में दर्द हो तो कद्दू का जूस पीना चाहिए, पेठा होता है ना, उसका जूस पीना चाहिए। नहीं तो थोड़ी दिन मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो ना थोड़ा सा, एक सप्ताह में बीपी 100% एब्सोल्युटली नॉर्मल आ जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट। प्रणाम महाराज जी, मैं मीरा गोयल प्रीमियम क्लब से। ये रक्त मोक्षण क्या होता है? ये रक्त मोक्षण, जैसे किसी को वेरिकोज वेंस है, घुटनों में कमर में दर्द है, 1 साल से दर्द है, टेनिस एल्बो है, 2 साल से कंधे जाम है, गर्दन नहीं घूमती है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, तो हम लीच लगा देते तो खून, गंदा खून निकाल लेती है। और लीच माने अरे वो जोंक, हाँ, अब जोंक कहने से ना चौंक जाते हो तुम। ऐसे अंग्रेजी में बोलो लीच थेरापी, बोलो बहुत बड़ी चीज़ होगी कोई तो एक चीज़, इससे दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। किसी कोई पिगमेंटेशन और काले पीले हो जाते हैं ना, एकदम से 3 दिन से 7 दिन में काला पीला ठीक। वेरिकोज वेंस में 7 दिन में 99% और किसी किसी को तो 100% फायदा। कुछ भी पेन नहीं होता है, ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने, चींटी ने एक बार ऐसे छुआ हो, वो पता ही नहीं लगता। आप अपने आंखों से देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। और कराई क्या होता है? हम तो यहाँ आँख पे लगाते हैं, यहाँ चेहरे पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं। आँख में किसी को ऐसे बार बार फड़कने की दिक्कत, वो बहुत तरह की, कान में न सुनने की दिक्कत, ट्रेजिमेंट न्यूरोलॉजिया में, ऐसे क्रिटिकल रोगों में भी हम इसको लगाते हैं। एक तो ये है रक्त मोक्षण का तरीका। दूसरा, वो जैसे सींगी लगाते थे ना पहले, ऐसे छोटे छोटे ऐसे निशान कर देते हैं और उसको फिर वैक्यूम से खींचते हैं, वो भी दूसरा तरीका है। तीसरा, फिर एक्यूपंक्चर करते हैं। तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि 50% आयुर्वेद रक्त मोक्षण है, और महर्षि चरक कहते हैं कि 50% आयुर्वेद बस्ती है, जो एनिमा देते हैं, मेडिकेटेड एनिमा। तो ये 2 चीज़ें करा करके ही हम लोगों की 99% बीमारियां ठीक कर देते हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, जो रक्त मोक्षण जिसको कहा, और ये दूसरा बस्ती। और एक कराई क्या है? कराई अपने कराई कराते हैं। व्हाट इज कराई? मेरे को कराई तो बार बार बोल रहे थे ना कि कोई कराई थेरेपी या कराई थेरेपी। आई कुडंट अंडरस्टैंड। नहीं, कोई वर्ड आपने कोई मिस हो गया। हाँ, कोई वर्ड नोट कर लिया जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलो बहन जी। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम। रोटरी क्लब दिल्ली साउथ एंड। नाम क्या आपका माता? मिसिस गांधी। आपने गांधी। मिसेस गांधी नाम, मिसेस गांधी नाम बताया नहीं आपने पहले। हाँ, बने जाए। सुधा गांधी। ये दिव्य धारा ड्रॉप्स हम आमंड ऑयल में मिक्स करके नाक में डालते हैं, जिससे नाक थोड़ा ब्लॉकेज खुल जाती है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है, इसको कोई और परमानेंट इसका है सॉल्यूशन? मैंने बोला ना,
दिव्य धारा को एल्बेंडोल के साथ डालना थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो जाता है। आप इसकी बजाय जो मैंने ये नया प्रयोग बताया ना आपको, ज्योतिषमती वाला, इसको आप 1-2 सप्ताह कर लो। परमानेंट नॉच क्लॉच जो होती हैं, जो अंदर पोलिप्स आदि भी, साइनस पोलिप्स आदि हो जाते हैं, वो भी पूरे खुल जाते हैं। ज्योतिषमती कोई न्यू ड्रॉप्स है वही? हाँ, ये ड्रॉप्स है, ऑयल है। ज्योतिषमती मालकांगनी एक बीज होता है, उसका तेल है। ओके। एब्सोल्युटली 100%, मतलब एकदम जिसके अंदर अल्टीमेट है वो। एक और क्वेश्चन पूछना स्वामी जी। जरूर। ऐसी कोई मिरेकल मेडिसिन है जिससे इंसान पतला हो जाए? पतला होने के लिए मैं 10 उपाय बताता हूँ। मेदो हरवटी, वेट गो, गोधन अर्क, लौकी कल्प, अश्वगंधा के पत्ते, फिर जो थोड़ा दिन उपवास थेरापी इसमें बड़ा अच्छा काम करती है, योग के साथ। योग तो करना पड़ेगा। जब बढ़ाने में इतनी मेहनत किया तो घटाने में थोड़ी तो करना। थैंक यू गांधी। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम नेहा गर्ग, मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंट्रल। अभी आपने जो हमें सब योग वगैरह के बारे में बताया, तो छोटे बच्चों को कैसे बचाया जाए कोरोना से? देखो, छोटे बच्चों के लिए तो जो मैंने औषधि बताई है ना, दिन भर उनको 1 सौसारी पानी में घोल दिया और उसमें थोड़ा हनी मिला करके दिन भर में 1 दे दो। छोटे बच्चे को 10 साल, 7 साल, 8 साल तक के, तो 10 साल के बाद वाला तो 1 गोली खिला सकते हैं। और ऐसे पानी में घोल के हनी मिला के दे दो। वैसे उनके लिए शिला तुलसी भी हमने एक ड्रॉप बना रखा है। शिला तुलसी, शिलाजीत और तुलसी के ड्रॉप्स हैं, तो 5 बूंद ऐसे दूध में पानी में डालो और पिला दो। बहुत अच्छा, खाने पीने में भी टेस्ट उसका अच्छा है और बच्चे इजीली ले लेते हैं। बाकी शिला तुलसी जी, और स्वासारी और कोरोनिल या गिलोय घनवटी। नेक्स्ट। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम पवनपुरी है, फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ एंड। मेरा प्रश्न आप दोनों से है, सुधीर जी से और आपसे। आप दोनों बहुत ही सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, और प्लस आपने तो लोगों की ज़िंदगियों में शारीरिक मानसिक सफलता दी है। सुधीर जी ने लोगों की ज़िंदगियों में इतनी रोशनी पैदा की है। मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर? ठीक कहा आपने, रोशनी। हाँ, आप दोनों की जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? वेयर डू यू गेट योर एनर्जी फ्रॉम? नहीं, ये तो एनर्जी स्वामी जी की पूछें आप, मेरी तो एनर्जी कुछ नहीं है भैया। मैं तो स्वामी जी के यहाँ जाऊँगा वेलनेस सेंटर में, कुछ एनर्जी लेके आऊँगा इनसे मैं। देखो, मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है सुधीर जी एक बहुत खुश दिल इंसान है, क्योंकि आदमी के भीतर जो होता है ना, उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप की बाई दफ़ा उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 70 साल। ये 70 साल के होकर के 50 साल जितने लगते हैं। खुश रहना चाहिए इंसान। अब ये हमारे आहूजा साहब सर्वांग आसन, सारे आसन सब कुछ करते हैं 77 साल के होकर के। तो आदमी को ना 80 साल तक, ये मेरी बात घर जाके डायरी में नोट कर लेना, 80 साल तक अपने आप को बूढ़ा मत मानना। आदमी जब अपने आप को ये मान लेता है ना, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो रिटायर हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हेडल्स हैं हमारे जीवन में ना, जीवन में कुछ अवरोध हैं, इनसे हमें निकलना चाहिए। नमस्कार स्वामी जी, I'm संजय गुप्ता फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंट्रल। स्वामी जी, मेरे को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रहा है और ऑपरेटेड केस है, तो उसके बाद स्पाइन सर्जरी कराया हुआ है, बट मेरे को उसके बाद भी पैरों में डिस्कम्फर्ट, कोल्ड फीलिंग और पेन और थोड़ा थोड़ा नमनेस कभी कभी, ये सब चीज़ रहती है। तो इसके लिए क्या कोई मेडिसिन? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कार्यक्रम कराया पंजाबियों ने और प्रश्न सारे अग्रवाल लोग पूछ रहे हैं। थोड़ा हंसी मजाक वाली बात है, बैठो। तो मेरा काम लोगों को रिलैक्स करना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। तो अच्छा, डॉक्टर लोगों की मूर्खता की बात कर लो थोड़ी देर। आप में से कोई डॉक्टर हो तो मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो, डॉक्टर क्या बोलते हैं, स्पाइन की ऑपरेशन करने पर आपको पैरालिसिस हो सकता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज करानी जरूरी है। तो पहले कर ले भाई। डॉक्टर साहब, दूसरी, 1 मिनट बात
जो कोई बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है। डॉक्टर कहेंगे घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद भी पैर को हिलाना ज़रूरी है। अभी 6-7 दिन पहले जितेंद्र जी है ना, पीएमओ में मिनिस्टर हैं काफ़ी, जितेंद्र सिंह जी, तो मेरे से बोले जी डॉक्टर ने बोला कि भाई ऑपरेशन कराने के बाद ना डॉक्टर साहब फिर ये हिलानी पड़ेगी टांग। बोले मैं पहले ही हिला लो। उसने हिलाई और सच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई आप जब ऑपरेशन के बाद भी टांग हिलानी है, ऑपरेशन के बाद भी स्पाइन की आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी है, और ऑपरेशन के बाद भी हार्ट वालों को डाइट कंट्रोल करना है, तो पहले से कर लो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अडोप्ट कर लो। और करने के बाद भी ये तो बात हुई एक फिलोसफी की। अभी ऑपरेशन कहीं का भी करा लो, उसके बाद स्टिफनेस और जो ऑपरेशन की जो दिक्कतें रहती हैं, तो इसमें मेरे ना यूट्यूब पर मेरे अलग अलग वीडियोज़ हैं। पूरी दुनिया के करीब 100 करोड़ के करीब व्यूज़ है मेरे वीडियोज़ के ऊपर, अलग, किसी पर 10 करोड़, किसी पर 20 करोड़, किसी पर 5 करोड़, ऐसे मेरी सैकड़ों वीडियोज़ हैं। तो योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड इसके नाम पर आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसमें कोई शॉर्ट वीडियोज़ हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ में 5 आसन हैं, कुछ में 10 हैं, किसी में 12 हैं। जितने आप इजीली कर सकते हो उनको कर लीजिए, आपकी दोबारा कमर जैसे थी वैसी हो जाएगी। डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन भी आप बताएंगे आपकी जो उसके लिए ली जाए, तो पेन के लिए थोड़ी सी? हाँ, वो अच्छा है, उसमें पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट है। दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा सा डाल के ले लो, पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रीट खाने के बाद ले लो। 1-2 दिन में आपको चैन पड़ जाएगा, 1-2 दिन में ही। और सुन लो सब पैसे वालों, सोना चांदी हीरे मोती पहनना बंद कर दो, और जो आज पहन के आए हैं सब मुझे दान कर दो। ये मजाक की बात है, लेकिन सोना चांदी हीरे मोती खाओ। मैंने एक दवाई बनाई, उसका नाम ही आयु प्राइम है। आयु प्राइम। तो 1 कैप्सूल साल में 1 महीना जरूर खा लेना, 1 महीना 30 दिन। इसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, 500 रुपये का 1 कैप्सूल है। 1 ग्राम इसमें 1 ग्राम सोने की भस्म है, 12 ग्राम इसमें चांदी, 12 ग्राम इसमें मोती है, 4 ग्राम चांदी है, और 100 मिलीग्राम इसमें हीरा है। ये खाते ही आदमी को मतलब एकदम से एज रिवर्स माने एंटी एजिंग है। आपको ना एकदम ऐसा लगेगा जैसे मतलब आप अपने 10-15 साल पीछे चले गए जिंदगी में, इतना जबरदस्त है। आयु प्राइम, ये अभी हरिद्वार मिलता है, आप ऑर्डर मी से मंगवा सकते हो, और थोड़े दिनों में अभी अभी हरिद्वार मिल रहा है। करीब 1 महीने बाद अपने पतंजलि मेगा स्टोर जो अपने सेंटर से वहाँ भी मिल जाएगा, क्योंकि महंगा है ना बहुत, तो लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो जो भी आप लोग इतना, और ये 100% सेफ है। कोई भी चीज़ को ना, हमारे पास इतना बड़ा रिसर्च का सेटअप है, जितनी डोज हम आदमी को देते हैं उससे 16 गुना डोज हम एनिमल्स को दे करके, एनिमल ट्रायल करके फिर आदमी को देते हैं। और कोई भी, और इसका लीवर किडनी करीब 22 अंग हम निकाल करके चूहों के और खरगोशों के जिन जानवरों को देते हैं, उनके 22 अंग निकाल करके माइन्यूटली जा करके उसको मेजर करते हैं चीज़ों को, कि लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, हार्ट पर, हड्डियों पर, चमड़ी पर, बालों पर, आँख, कान, नाक, दांत, किसी पर भी कोई गलत असर तो नहीं हो रहा। आपने कई मेरे जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णे एक बीमारी के बारे में पूरा रिसर्च पेपर्स को बारे में डिटेल बताते। कितने लोग मुझे आस्था पर रेगुलर सुनते हैं? चलो 8-10 15-20 लोग तो हैं। मेरे को देखा नहीं आपने? हाँ देखा मैंने। अच्छा। आपसे तो मेरा अफेयर हो गया ऐसा। स्वामी जी आखिरी सवाल एक और, कि थोड़ा सा स्लीपिंग प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, तो थोड़ा उसके लिए कुछ मेडिसिन? इसके लिए ना एक तो उज्जाई किया करो, इससे एक तो ये खर्राटे आदि नहीं आएंगे और नींद अच्छी आती है। दूसरे, सोने से पहले भ्रामरी ओम आराम आराम से कर लिया करो। नींद आई नहीं रही तो ये करते रहो। और सच्ची आपको, एक ने मेरे को बोला कि बाबा जी वक्त नहीं है। अरे मैंने कहा नींद आने रही, वक्त ही है। तो 5-7 मिनट में इतनी बढ़िया नींद आती है, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं। भ्रामरी है ना ऐसे, ओम
जब पत्नी सो जाए तब कर लेना। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत जबरदस्त, और धीरे धीरे करना है, बढ़िया नींद आएगी। आप आज ही ट्राई करके देख लेना। और जिनको बहुत भयंकर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, और जिनको माइग्रेन पेन रहता है, आज ही करना, आज से फायदा होगा आपको। मैं बहुत किसी भी चीज को नाप तोल के बोलने वाला आदमी हूँ, हंसी मजाक को छोड़ करके। वो तो ऐसे ही थोड़ा अलग। सबसे पहले क्या बताया था आपने? एक तो भामरी बताया, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है बहनों? ये अच्छी प्रचारक है। गले को टाइट करके सांस भरना और दाएं नाक को बंद करके बाहर से छोड़ना। जी साहब। स्वामी जी, मैं विनय महेंद्रू, रोटरी साउथ एंड से। मैं जानना चाहता था, आजकल मल्टी विटामिन रोज सारे बहुत से लेते हैं, तो आपके भी कुछ नेचुरल विटामिन हैं जो मल्टी विटामिन की जगह बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं आपको एक बता, जैसे मल्टीविटामिन हमारा है डेली एक्टिव, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, 40 पोषक तत्व हैं, 100% नेचुरल है या बायो फर्मेंटेड है, ऑर्गेनिक है, कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते। ऐसे ही बी कॉम्प्लेक्स का हमारा विकल्प है डेली एनर्जी। हम विटामिन डी की पूर्ति के लिए जो हम लाइकिन से बनाते हैं, नेचुरल है वो। बाकी लोग इधर उधर से सब केमिकल बेस्ड हैं, सिंथेटिक हैं। न्यूट्रिला डी, न्यूट्रिला ब्रांड है अपने न्यूट्रास्यूटिकल का। B12 हम कॉर्न हल से बनाते हैं। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से हम बोन हेल्थ कैल्शियम बनाते हैं। मंडो स्पेनिच से हम लोग जो है वो आयरन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। विटामिन सी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वर्ल्ड में पहली कंपनी है न्यूट्रिला पतंजलि, जिसको हम रोजी हिप से तैयार करते हैं। विटामिन सी या तो सिट्रिक फ्रूट से तैयार करते हैं। विटामिन सी लोगे तो थोड़ी दिनों में कफ कोल्ड बहुत लोगों को बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और ये सब स्टिफनेस आने लगती है। हमने जो तैयार किया है विदाउट जो है सिट्रिक एसिड, विदाउट केमिकल, ये सब 100% रोजी हिप्स और पम्पकिन सीड से तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप न्यूट्रिला डी, B12 कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब। ओमेगा हमने बनाया है सीबकथोन और फ्लैक्स सीड से, जैसे बाकी सब मछली से तैयार करते हैं। इन एक महीने में, आज मैं बैठा हुआ था तो एक बोले जी, वो हमारे एक परिचित हैं, उनको विटामिन डी जो है बहुत कम हो गया था, एक ही महीना खाया, अब तो उनका 100 से ऊपर पहुंच गया, पहले तो 10 से नीचे आ गया था एक ही महीने के अंदर। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ें है। तो शहरी लोगों को धूप मिलती नहीं है, तो आप में तो करीब 80 या 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी, चेक करवा लेना। जी स्वामी जी, मैं वासवी स्वरूप, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीमियर। आई एम वेरी, आई जस्ट वांट टू नो, आपने डाई किया अपना हेयर या आपका ऑलरेडी ब्लैक हेयर है? अभी कोई ये ना पूछ ले कि स्वामी जी आपने विग लगाई है कि आपके बाल नेचुरल है। तो देखो, आप बालों से लेके, आँखों से लेके, कानों से लेकर के पूरी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। सुबह एक बार पसीना बहा लिया करो। मेरा एक सूत्र है, सुबह उठ के पसीना बहाओ। आहूजा साहब तो मेरे सारे प्रवचन इनको याद हो गए, ये अभी नए योगाचारी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ या तो पसीना टपकाओ या खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार सुबह पसीना बहा लो, पूरी बॉडी में ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज हो जाता है। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग सुबह एक बार पसीना बहाओ, फिर कम से कम 1 घंटे का योग प्रैक्टिस जरूर को। पैसा कमाने के लिए कितने घंटे मेहनत करते हो सेठ लोगों? 10, 12, 14, कभी कभी 16, 18 भी हो जाता है। तो जब पैसा कमाने के लिए, जिन पैसों से घर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, थोड़ा बैंक बैलेंस, आपके नंबर्स कुछ अच्छे हो जाते हैं बैलेंस शीट में, और थोड़ा सा ऐंठ के चलते हो, मेरे पास इतना पैसा है, बस इस आकड़ के लिए। बाकी तो भीतर से सब खोखले हो रखे। तो जब 10, 12, 18 घंटा पैसा कमाने के लिए आप मेहनत कर सकते हो, तो अपनी जिंदगी को आरोग्य पाने के लिए 1 घंटा जरूर दो, सबको ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट है, क्योंकि अभी 6 बजे का मेरा कमिटमेंट था। नहीं ठीक है। स्वामी जी, क्वेश्चन, मैं भी अग्रवाल हूँ जी। अच्छा, अग्रवाल, जरूर साहब। कोई पंजाबी नहीं आ रहा आगे? पंजाबी अग्रवाल हूँ मैं। क्या नाम है सर? रोहित अग्रवाल। रोहित जी, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ एंड से हूँ जी। जी। मुझे जी काफी कोई नहीं, ये वैसे अग्रवाल, अरे ठीक है, सब एक ही है। हाँ। तो मुझे जी ये जब मार्च और अप्रैल का महीना आता है, जब कटाई का सीज़न आता है, तो हर साल मुझे सांस की बड़ी प्रॉब्लम होती है।
तो काफ़ी साल तो काफ़ी सारे मेडिसिन लेके देख ली, लेकिन किसी से भी कोई असर नहीं होता जी। तो इस बार ये इसमें फेफड़े में, छाती में भी जाम होता है? जी 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 जी। उसी तरह का कलरलेस फ्लेम सा इकट्ठा होता है, जब उसको निकाल देता हूँ ठीक हो जाता है, नहीं तो वैसे रहता है जी हमेशा। तो ये सिर्फ, और अप्रैल जैसे ही ख़त्म होता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ जी, पूरा साल ठीक रहते हैं। तो इस साल मैंने एलर्जी टेस्ट करवाया जी, रेस्पिरेटरी सारे, किसी चीज़ की कोई एलर्जी नहीं निकली जी। बहुत अच्छा। लेकिन समझ नहीं आती जी किस का तो कोई। इसमें ऐसा करना, अभी आप अगले साल मार्च अप्रैल से ही आप स्वासारी गोल्ड लेना शुरू कर देना। जिनको भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स है ना, स्वासारी गोल्ड, शुगर हो तो गर्म पानी के साथ ले लो, गर्म पानी में डाल दो कैप्सूल खोल के और उसको सिप सिप करके पी लो। और शुगर नहीं हो तो शहद के साथ चाट के खा लो, 100% आपको एलर्जी नहीं होगी, एकदम गारंटेड बता रहा हूँ। और वो नशे जरूर कर लेना। स्वामी कितनी देर लेना पड़ेगा जी? हैं? कितनी देर ये लेना पड़ेगा? ये 1-2 महीना ले लो ना, ये तो आप ऐसे परमानेंट भी ले सकते हो, लेकिन 2 महीना पहले इसलिए मैंने बोला 2 महीने से फिर आपको ना फेफड़ा एकदम उसको स्ट्रेंथ बहुत मिल जाएगी। बहुत जबरदस्त, थैंक यू। तो मुझे एक जल्दी से एक सवाल। हाँ जरूर। एक सवाल स्वामी जी। फिर एक पंजाबी को प्रश्न पूछने का हक बनता है लास्ट। हाँ जी। मेरा नाम है रविनाथ, मैं दिल्ली जी साहब, प्रीमियर क्लब से। जी रवि जी। आपकी उम्र शायद मेरा ख्याल 65 से ज़्यादा है। नहीं थोड़ा कम है, थोड़ी कम है, लगते 40 है। पर आपने कहा कि 80 साल तक कोई बुढ़ा नहीं होता, भगवान ना। मैं तो 100 साल तक नहीं हूँ। हाँ, आप 100 साल तक नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने जो सारी चीज़ इतनी अच्छी करी है और जो बहुत कुछ करेंगे, आपने अपने बात के बारे में सोचा है कि वो कौन टीम जो आपका ये जो अच्छा कार्य है इसको, अच्छा इस आगे कौन सक्सेसर हो? हाँ जी। वैसे आप जवान होते तो मैं आप ही को बना देता। तो स्वामी जी एक क्वेश्चन, मैं लास्ट इसको मैं आपको 1 मिनट इनका उत्तर दे देता हूँ। जो है, मैंने करीब 100 से ज़्यादा सन्यासी अभी तक बना चुका हूँ, और वो बहुत कैपेबल हमारे बच्चे हैं। BA, MA, PhD, BCom, MTech, BTech, अलग अलग मेडिकल के अलग अलग डिग्रियाँ लेकर के मॉडर्न एजुकेशन भी ली है, एंसेंट एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी ली है। ऐसे हमारे संत हैं। और जैसे कोई गृहस्थ कि 1-2 बच्चे काबिल होते हैं तो बड़ा खुश होता है, तो मैं इसलिए मस्त रहता हूँ कि मेरे बाद इस कार्य को मेरे अभी भी रहते रहते भी संभालने के लिए 100 से ज़्यादा योग्य बच्चे मेरे पास हैं सन्यासी, इसलिए मैं निश्चित। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। स्वामी जी, मैं संदीप अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ। फिर अग्रवाल? हाँ। चलो अभी पंजाबी, एक लास्ट क्वेश्चन पंजाबी को अलाउ है। लीजिए। हाँ जी। स्वामी जी, मेरे को एलर्जी बहुत रहती है, जैसे स्किन पे आ जाती है या आँख पे या फेस पे भी आ जाती है। कभी एक दिन कुछ खाया था वहाँ पे और उस दिन एलर्जी हुई, उस दिन के बाद से ये ऐसा एलर्जी एकदम से आ जाती है, एलिमेंट खाने से हो जाती है। आपको पूरा 100% इलाज बताता हूँ, मैंने खूब देखे हुए एलर्जी के केस। गोधन अर्क नीम की गोली या नीम की ताजी पत्ती खा लो। गोधन अर्क किसी को ऐसे ना पिया जाए तो हनी डाल के पी लो, एसिडिटी भी नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो एक हम देते हैं जो है डर्माग्रिट, डर्माटोलॉजिस्ट तो याद है ना, डर्माग्रिट एक बहुत ज़बरदस्त औषधि है हमारी। डर्माग्रिट खाली पेट, ये ग्रिट की हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है। डर्माग्रिट खाली पेट, और बहुत ही शरीर में चकत्ते चकत्ते उधर उपद्रव होते रहते हैं तो सोरोग्रिट, सोराइसिस और तमाम तरह के बड़े बड़े उपद्रव होते हैं ना, एक्जिमा और पता नहीं क्या क्या, तो ये खाने के बाद ले लो। नमक मीठा, मैं 3 चीज़ों का जहर बताता हूँ, चीनी, नमक और मैदा, इनको थोड़ा सा अवॉइड करो ना, ठीक हो जाएगा। स्वामी, जैसे जॉइंट्स में सब में पेन, जॉइंट में भी पेन रहता है तो एलोवेरा जूस पियो लो, एलोवेरा जेल लगा भी लो। स्किन के लिए जेल बहुत अच्छा है, पीने में एलोवेरा या गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, हार श्रृंगार और ये जो मोरिंगा जिसको क्या बोलते हैं, सहजना और निर्गुंडी, कोई भी एक चीज़ मिल जाए 2, 3, 5 में से इतना ही पी लो, अंदर का वात रोग कतई नहीं रहेगा, एकदम नेचुरल सॉल्यूशन बता दिया। ठीक, लास्ट एक क्वेश्चन पंजाबी को अलाउ है भाई। हाँ, इसको दे उतार लो अपना। हाँ, बड़ी स्मार्ट लेडी है, दे दो। हाँ, मास्क उतार लो। जी मेरी बहन बोलिए।
मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अपने बालों की ग्रोथ को कैसे ठीक कर सकते हैं। एकदम पक्की बात बता देता हूं। देखो, हमने एक अभी तेल निकाला है केश कांति एडवांस। मेरे पास जो हजारों लोगों के रिव्यूज हैं उसके ऊपर, एक सप्ताह से लेकर के 1 महीने और मैक्सिमम 2 महीने में तो जो किसी किसी के बीच बीच में ना पैचेज आ जाते हैं बतासे जैसे, और बहुत बुरी हालत, बाल ऐसे हाथ में 100 200 500 हाथ में ऐसे बाल एक बार में आ जाते हैं। पहले दिन से आपको फायदा हो जाएगा। क्या नाम बताया फिर? केश कांति एडवांस, ठीक है, धन्यवाद। और यदि फायदा ना हो तो खाली शीशी लिया ना 400 रुपये वापस मिल जाएगा। तो स्वामी जी हफ्ते ये इतना जबरदस्त है, सच में बहुत बढ़िया तेल बनाया अभी हमने, उससे नए बाल आ जाते हैं। मेरे साथ एक सीआरपी का जो जेड सुरक्षा में लड़का रहता है, उसके पूरे बाल झड़ गए थे, उसका फोटो मैंने अखबार में भी छापा, आपने किसी ने देखा होगा तो उसको, है ना। स्वामी जी सुबह खाली पे सुबह सुबह लगा लो ना, एक बार शाम को लगा। ऐसे तो लेडीज कभी भी लगा सकते हैं, तो ऑफिस वालों के चौचले होते हैं, बाल में तेल नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, इसलिए सब अब फिर वापस लगाएंगे। तो ये कभी भी लगा सकते हैं, और शैम्पू करने से पहले तो लगा ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। अरे साहब रखो ना। अरे बे तुम्हारे हस्बैंड को पता है तुम कितनी भोंडी और कितनी सोनी हो। दूसरों को किसी को रिझाना है नहीं। अबे अपना जैसे हो अपने लगा के रखो, अच्छा है। मैंने अभी बाल में तेल लगा रखा, खराब लग रहा हूं क्या? फालतू की बात। कब लगाना चाहिए। चलो, तो ये हंसी मजाक की बात थी। शुक्रिया स्वामी जी। हाँ, लगा के रखा करो। तो सुधीर जी बहुत बहुत क्योंकि हरिद्वार मुझे नहीं जाना होता, आप लोग संख्या में चाहे कितने हो, लेकिन बहुत प्यारे लोग हैं रोटरी के। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई भी बहुत अच्छे, और बहनें तो उनसे ज्यादा अच्छी हैं। एक बार आपके लिए स्पेशल हाँ आशीर्वाद। और हमारे आहूजा साहब, आपने आज का समय अच्छे लोगों के लिए लिया, इसलिए आपको भी विशेष अभिनंदन। और दिव्या और जो है रुचि को तो विशेष आशीर्वाद। दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाएगा। ये बच्चे जो है बड़े भाई साहब के पीछे, बाबा जी तो आपकी मानते हैं, और ये सच में इनकी मानता हूँ। तो फिर बोले नहीं, बाबा जी को लेके आना है। तो मैंने कहा भाई मेरे को 10-20 लोगों में ले जाके मत बैठाना। तो आपने सारे क्लब इकट्ठे कर दिए, बहुत अभिनंदन है इसके लिए। हाँ। और शायद पहली बार आप लोग ऐसे एक साथ इकट्ठे हुए, नहीं तो वर्चुअली इकट्ठे होते रहते थे। हाँ, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। Thank you, Swamiji and Rotarian Sudhir Seth for this enlightening session. सुधीर जी के विशेष। I now request Anne Sonia Gupta from Rotary Club of Delhi, South and Central to propose the vote of thanks. लॉट ऑफ थैंक के लिए भी अग्रवाल। हाँ जी, देखिए जिस तरीके से सन्यासी हमारी सांस्कृतिक धरोहर आगे लेके चल रहे हैं, बनिए और मारवाड़ी हमारी व्यावसायिक धरोहर आगे लेके चल रहे हैं। तो हम दोनों हाथ में हाथ लेके दुनिया में मोदी जी के साथ हिंदुस्तान का नाम बड़ा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। संक्षिप्त में बिना खिचड़ी के 2 धन्यवाद के शब्द, खिचड़ी नहीं करूंगी। आध्यात्मिक योग, शारीरिक योग, श्वास योग, ध्यान योग, सहज जीवन जीने की शैली का योग, राष्ट्र निर्माण योग, सच कहूं तो समग्रता में योग और सहज योग में समग्रता, ये सब आपने पूरे 1 घंटे में हंसी मजाक और 2 टूक तरीके से तीनों रोटरी संगठनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कुछ कुछ विशेषण और कुछ वाक्यांश आपने स्वयं अपने लिए प्रयोग किए, और कुछ मैंने निचोड़ में निकाले। खड़ाऊ सहित कमंडल रहित 2 टूक बात करने वाले गेरुए पहने हमारे
आज के सन्यासी गुरु, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रखंड पुरुषार्थ से अभिभूत, अनुभव को पुष्ट करने का आत्मविश्वास एवं जुनून लिए हुए, भारत की प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि और आखिर में हम जैसे ही सब तरह से सहज देव नहीं, रामदेव नहीं, हम सब की तरह साधारण अभिव्यक्ति करने वाले गुरु बाबा रामदेव जिंदगी की बहुत ही ज़रूरी सीखों को हमारे सामने हमारे में से एक बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम गुरु का अभिवादन करते हैं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री रामदेव बाबा गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपसे फिर मिलेंगे। हो सकता है आपके शिविर में 10% डिस्काउंट के साथ आएं, या आप फिर हमारे समक्ष आकर अपनी दो टूक बात करके हम सबको सही स्थान दिखाएं, आध्यात्म का रास्ता दिखाएं, राष्ट्र निर्माण का रास्ता दिखाएं, क्या नाम है बेटा आपका? भारतीय होने का रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। क्या नाम है? सोनिया। नाम पर मत जाइएगा। आ जाना, खतरा है नाम में। इधर आ जा, इसका इधर आ, तेरा फोटो खिंचवा रहे। आ जा, हाँ बोनस मिला है। देखो ये समझदार बेटी है, देखो इसने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छे से सुना इसने। अच्छे श्रोता भी अच्छा होना चाहिए सोनिया की तरह। वैसे मैं बताऊं, मेरे भी संस्थान में सबसे पहली आहुति, बड़ी आहुति अग्रवालों ने डाली। फिर तो पंजाबी सब साथी हैं, हाँ? सारा देसी साथ है, तो इसलिए अग्रवालों के, इसलिए नाम में ही अग्रवाल है। अग्र आगे आगे रहने वाले। बहुत आशीर्वाद। That was lovely. I request all the presidents and honorary secretaries from the three clubs, Rotarian Raghav Chandra and Rotarian Pankaj Murarka of RCD Premier, Rotarian Rajneesh Mittal and Rotarian Ashish Kapoor of Rotary Club of Delhi South Central, and Rotarian Deve Ahuja and Rotarian Siddharth Sehgal of Rotary Club of Delhi South End to come up on the stage and present a token of appreciation to Swamiji. I request Rotarian Siddharth Sehgal of Rotary Club of Delhi South End to accompany Dr. Girish Ahuja on the stage. आज तो बड़ा माल मिल रहा है। साथ में इधर आओ ना, बीच में आओ, ज्यादा से यहाँ ऐसा। I now request everyone to proceed for high tea. Thank you.